হ্যালো, am I audible? কেউ একজন রিপ্লাই দিতে পারিস? am I audible? Yes, sir. Yes, you're audible. তো সবাইকে সবচেয়ে প্রথমে তো গুড ইভিনিং আর হ্যালো। আমার নাম হচ্ছে অমর্ত্য ভট্টাচার্য আর আমি জেএস কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ি। সব থেকে আগে জিজ্ঞাসা করি যে কেমন আছিস? সবাই বল কেমন আছিস? আচ্ছা আমি আগে বলে দিই, ক্লিয়ার করে দিই, সবাই প্লিজ। আচ্ছা ভালো, ঈশা মজুমদার বলেছে ভালো, আর সবাই সবাই রিপ্লাই দেবে এখানে। ফাইন স্যার, সবচেয়ে আমরা এখানে কেউ স্যার না, আমার এখানে সবাই দাদা। ওয়েল দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বন্ধু আরে ওই ব্যাংকে কাজ করে, গ্রামীণ ব্যাংকে। হ্যাঁ, ওকে কি বলছিল একবার জিজ্ঞেস করবে। প্রথমে তোর সাথে ভালো আছে সবাই যখন লিখবি, সুমি মন্ডল কিছু বলতেছে। তাহলে একবার গিয়ে কথা বলতে, অ্যাকচুয়ালি আমারও ওই মানে চিন্তা আছে যে শিব মন্দিরের উপরে দিয়ে আছে। অডিয়েবল আমাকে সবাই শুনতে পাচ্ছিস তো? আচ্ছা আমি সবাইকে একটা কথা শুধু বলতে চাই, সবাই প্লিজ একটু মাইকটা মিউট কর, সবাই প্লিজ একটু মাইকটা মিউট, সবাই যদি একটু মাইকটা মিউট করে তাহলে আমি বলতে পারবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে সবাই অনেকজন আমাকে লিখলো যে সবাই ভালো আছে। তো তোরা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি তোরা অনেক কটা স্কুলস থেকে এখানে জয়েন করেছিস আমাদের এই ইভেন্টটাকে, তাই জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর এই পুরো ইভেন্টটা শুরু হওয়ার আগে আমি একটা কথা বলে দিই, আমরা এই ইভেন্টের নাম রেখেছি জেআইএস টক। এটাতে হঠাৎ করে মাথায় আসতেই পারে যে বোধহয় দাদারা এখানে অনেক কিছু জেআইএস বের কারো ব্যাপারে বলবে, তো আমি আগেই বলে দিই এরকম কিচ্ছু না। আমরা এখানে সত্যি আজকে প্রচুর গল্প করব, প্রচুর জিনিস জানতে পারবো, প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব, তোদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দেবো, আর আমাদের কয়েকটা এক্সপিরিয়েন্স তোরাও শুনবে, তোদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো আমরাও শুনবো। আচ্ছা, তো এই ইভেন্টটা তো শুরু হবেই, তার আগে জিজ্ঞাসা করি যে তোরা যখন প্রথম এই লিঙ্কটা পেলি, মানে পোস্টারটা দেখলি, তো কি দেখে জয়েন করলি? এটা কি ভাবলি যে কেমন হবে, যে কি কিছু একটা ভেবেছিস? তো সেইটা বল, কেমন ভেবেছিস, কি ভেবেছিস, হঠাৎ জয়েন কেন করলি ইভেন্টটা? কেউ বলতে পারে? সবাই এখানে আমরা আজকে কিন্তু সবাই কথা বলবে, আমরা সবাই মিলে কথা বলে দেখবো অনেকক্ষণ এটা আমরা সময় কাটাতে পারবো, যদি কেউ আমাদের বলতে পারিস হঠাৎ কি মনে হলো, কেন জয়েন করলি এটা? নিউ এক্সপিরিয়েন্স, ঈশা মন নিউ এক্সপিরিয়েন্স শুনতে এসেছি। থ্যাংক ইউ ঈশা। আর কেউ আছে যে আর কিছু বলতে চায়? এটা একটা ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন হবে, তাই খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে। ইন্টারেস্টিং ছিলাম, কিছু জানতে চাই, শুনতে চাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সবাইকে যে এতজন এত কিছু সুন্দর সুন্দর জিনিস ভেবেছে। সত্যি আমরা সত্যি এরকম কিছু একটা ইন্টারেস্টিং গল্প করব, তোদের ইন্টারেস্টিং গল্পগুলো শুনবো। আর সবকিছুর আগে তো একটা কথা বলি যে গল্প তো আর হাউ টু ফেস দ্য প্রবলেম ইন কলেজ, বা থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমরা সত্যি অনেক কিছু এরকম টাইপের জিনিসগুলো আমরা এখানে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি, যাতে তোরা সত্যি কিন্তু অনেক কিছু বুঝবি যে হাউ টু ফেস নিউ চ্যালেঞ্জেস ইন দ্য কলেজ। আচ্ছা, গল্প করার আগে এটা বলতে দিই যে একা এতক্ষণ এত জনের সঙ্গে গল্প করতে পারবো না, তো আমার সঙ্গে আরো দুজন আছে, একটা সুকমানদা আছে আর একটা আমাদের সায়ন্তন আছে। তো আমাদের এরা দুটো স্পিকার যারা আছে, তাদের সঙ্গে অনেক কিছু অনেক অনেক গল্প করবে, অনেক কিছু শেয়ার করবে। তার আগে আমি একটা কথা বলতে পারি যে এখানে কিন্তু সুকমানদা হিন্দি কথা বলবে, কারোর কি কোনো প্রবলেম আছে? কিন্তু হ্যাঁ, সুকমানদা বোঝে সব বাংলায়, তো তোরা যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারিস, যে কোনো কথা না বুঝলে আমাদেরকে বলতে পারিস। তার কেউ কিছু বলতে চাস যে কিছু প্রবলেম হতে পারে? তাহলে শুরু করা যাক কি? তোরা একবার হ্যাঁ বল যে হ্যাঁ শুনতে চাই। স্যার না প্লিজ, আমি এত তোমাদের যোগ্য এখনো হয়নি। যাই হোক, তোরা আমার এইটুকুর জন্য স্যার বললি, একদমই না, আমি স্যার, হ্যাঁ আমি দাদা। আচ্ছা সুকমানদা, शुरू करी। हाँ मतलब थैंक यू। सबसे पहले हेलो सबको, हेलो मैं सुकवंत और होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स, क्योंकि हिंड्रेंस होगा, फिर हम एक दूसरे की बातें नहीं सुन पाएंगे। थैंक यू। जब आपको बोलना हो तो आप माइक ऑन करें और रिप्लाई करेंगे, वैसे हम भी अपना माइक ऑफ करेंगे जब आप बोलते रहेंगे, ठीक है? इंटरैक्टिव सेशन करेंगे हम, आशा करते हैं। और एक चीज और, प्रथमे বলে দিই, আমি বাংলা বুঝতে পারি কিন্তু বলার একটু আমার ডিফিকাল্ট, আমি বলতে পারি না, আমার বলতে একটু ডিফিকাল্ট লাগে কথাটা, তাই
তোমরা যদি চাও আমার সঙ্গে বাংলাতে, হিন্দিতে বা ইংরেজিতে কথা বলতে পারো। তোমরা কি কমফোর্টেবল হিন্দি বা ইংলিশতে? হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কমফোর্টেবল। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি হিন্দিতে কথা বলবো, ঠিক আছে? হিন্দি ইংলিশ মিলিয়ে। एकदम सर, मैं एकदम दादा। আচ্ছা, না না, আমি স্যার না ভাই, दादा। थैंक यू। और मोस्टली जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप सब 9, 10, 11, 12 से हैं। सो आप सब 1 महीने या 1.5-2 महीने में कॉलेज जाने वाले होंगे। तो आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है कॉलेज से? मतलब आप कॉलेज जाएंगे तो क्या करने वाले हैं? मतलब कैसा लाइफ सोच स्टाइल है, कुछ तो सोचा होगा ना आप लोगों ने, तो वो क्या है? हमारा भी कुछ लाइफ स्टाइल तो हमने सोचा था कि ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कॉलेज जाने के बाद कि अड्डा मारेंगे, मतलब कैंटीन में जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, मूवीज जाएंगे। आपने कुछ ऐसा कुछ सोचा है क्या कि कुछ पर्टिकुलर करेंगे आप लोग? अगर कुछ सोचा है तो प्लीज बोलिए। स्कूल लाइफ में जो रिस्ट्रिक्शन होता था, तो वो तो नहीं होगा ना कॉलेज में, तो ऐसे ही। अच्छा, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम फ्रीडम Yes. होगा। अच्छा, और कोई फ्रीडम एक पॉइंट है? और किसी का कुछ है कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉलेज लाइफ से? अच्छा हाँ, मस्ती करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, थोड़ा फ्रीडम भी रहेगा, मोर और लेस फ्रीडम के आसपास है चीजें। और किसी का कुछ? थोड़ा एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा। मतलब एक्सप्लोर कैसा, क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं? मतलब कुछ नया नया चीजें सीखने को मिलेगा, डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल लाइफ जो भी है, तो लाइक दैट। अच्छा, न्यू कंपटीशन, न्यू चैलेंजेस। अच्छा हाँ, ये भी एक है। और किसी का कुछ? प्लीज फील फ्री टू टेल, टॉक टू अस, प्लीज फील फ्री। सो मतलब मेरे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कॉलेज जब मैं आ रहा था, क्योंकि हमारे टाइम में 3 इडियट्स मूवी आई थी, फिर करण जौहर की सो कॉल्ड स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी आई थी। तो वी स्टार्टेड ना, जब हमने देखा तो वो क्या होना स्टार्ट हुआ ना, अरे यार कॉलेज लाइफ ऐसी होती है, कैंटीन जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, फ्राइडे टू फ्राइडे मूवी देखेंगे। फिर सीनियर्स का और सोशल मीडिया का एक ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में। तो जब सीनियर्स का पोस्ट देखते थे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का या फिर कहीं ट्रिप पे जाने का, तो लगता था यार कॉलेज जाने के बाद ना यही लाइफ सही है, वाह क्या मजा आता है कॉलेज लाइफ में। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं कि किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जब चाहेंगे कैंटीन में बैठ पाएंगे, नए नए दोस्त बनाएंगे। तो वी हैव अनदर स्पीकर एज वेल, शांतन। शांतन, तुम्हारे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थे कॉलेज आने से पहले? হ্যালো গাইস, আমি শায়ন্তন। তো দাদা যেটা বলছিলে রেস্ট্রিকশন, তো ফার্স্ট অফ অল একজন বলেছে হ্যাঁ রেস্ট্রিকশন থাকবে না। তো ফার্স্ট অফ অল আমিও ভেবেছিলাম যে হ্যাঁ কোনো ড্রেসিং রেস্ট্রিকশন থাকবে না। প্রতিদিন যাব কলেজে একটা আলাদা রকম একটা শার্ট পরে, টি শার্ট পরে একটা ফাঙ্কি হেয়ার স্টাইল করে যাব, বাট কলেজে গিয়ে তেমন কিছুই হলো না। অ্যান্ড আমি যেটা বলছি, আমি কাইন্ড অফ লেট রাইজার, আমি একটু দেরি করে উঠি সকালে। 9, তো 9:30 ক্লাস থাকলে আমি সকালে উঠি 9টার সময়। তখন ওই মাথায় থাকে না যে হ্যাঁ আমি এই টি শার্টটা পরে না, আজ কালকে ওই টি শার্টটা পরেছিলাম, তো আজকে এই টি শার্টটা পরে যাই, একটা আলাদা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হবে। বাট সেটা কিছুই না। আমি জাস্ট সামনে যেই টি শার্টটা থাকতো সেটা পরে নিয়ে কোনো মতে স্নান করে খেয়ে দিয়ে আই ইউজ টু রাশ টু কলেজ, কারণ কি অফকোর্স তাড়াতাড়ি না গেলে ইউ ওয়ন্ট গেট দ্য অ্যাটেন্ডেন্স। অ্যান্ড আরেকটা ছিল যে সো আমি একটু শাই ছিলাম স্কুলে। I was kind of an introvert. তো প্রথম দিন ভেবেছিলাম যে I won't make any new friends. আমি I think the first day orientation ছিল। তো orientation day দিন আমি ফার্স্ট ডে হয়তো একদম কোনো ফ্রেন্ডস থাকবে না, কারোর সাথে কথা বলতে পারবো না, অ্যান্ড আমি একটা দূরে কোনো জায়গায় কোণে বসে থাকবো অ্যালোন, পুরো ইভেন্টটা এনজয় করবো। বাট আই ডিপার্টমেন্টে আই থিঙ্ক সো 2 or 3 ফ্রেন্ডের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়। আই থিঙ্ক সো দে ওয়্যার তন্ময়, শুভঙ্কর অ্যান্ড শঙ্কর। এখনো ওরা বন্ধু আছে আমার। তো আচ্ছা দাদা, তোমাকেও জিজ্ঞেস করি যে আমার তো ফার্স্টলি বেসিক্যালি আমি একটু শাই ছিলাম, তো ফ্রেন্ডস একটু ইয়ে হতে একটু টাইম লেগেছিল। পরে প্রথম দিকে একটু শাই ফিল করছিলাম, বাট এখন বলতে পারি যে আই থিঙ্ক সো ডিপার্টমেন্টের সব ক্লাসমেট আমার ফ্রেন্ডস, তাদের সাথে একটা ভালো আলাদা বন্ডিং তৈরি হয়ে গেছে। তো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো যে তুমি যখন এসেছিলে, so you were like introvert like me, না তুমি একটু extrovert ছিলে? How did you make friends and all?
नहीं नहीं, मतलब शांतन, मेरे से पूछने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि फ्रेंडशिप या फिर फ्रेंड्स बनाना आप लोगों के लिए कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है? मतलब फ्रेंड्स को लेके आप क्या सोचते हैं? फ्रेंडशिप जो एक चीज है उसको लेके आप क्या सोचते हैं? और हाँ, आप अगर बंगाली में बोलना चाहते हो, इट्स टोटली ओके। हम बंगाली सुन लेंगे, समझ में आता है मेरे को। मैं हिंदी में, एनी इंग्लिश में रिप्लाई लैंग्वेज, हिंदी, करूंगा। इंग्लिश, एनी बंगाली, लैंग्वेज यू कैन एनी प्रेफर। लैंग्वेज। ओके। फ्रेंड्स बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मुझे फ्रेंड्स अच्छा। बहुत अच्छे लगता है। ओके। That's good. That's good. अच्छा, आई एम बिट इंट्रोवर्ट बट मेक फ्रेंड्स इजीली। अच्छा, संदीप আচ্ছা, देवनाथ। সেটা একটা ভালো इसे, একটা পয়েंट। हाँ, इट्स अ गुड थिंग कि और कोई, मतलब सबकी लाइफ में एक ना स्टोरी होती है, तो छोटा छोटा स्टोरीज चलती है सबके लाइफ में। तो सबके लाइफ की अपनी स्टोरी है, अपना रिदम है। मेरी भी लाइफ की थी। मैं अपने अपना छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। अब सब दोस्ती वोस्ती सब उसमें आ जाएगी। कि जब मैं पहले पहली बार कॉलेज आया था ना, तो डे वन मेरे अकाउंट में पैसे आए, पापा मम्मी ने भेज दिए। तो अचानक से पैसा आया अकाउंट में। तो इस वॉज लाइक कि अच्छा, इसको तो मैं अपने अच्छा कुछ किसी का मैं सुमी मंडल, मेरे लिए तो डिफिकल्ट है फ्रेंड्स बनाना। আচ্ছা, ईशा you were kind मजुमदार of जो, like me, আমিও ফার্স্ট অফ অল তাই ছিলাম, अच्छा বাট इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, जो हर पल, अच्छा ईशा मजुमदार जो हर पल साथ निभाते हैं वो फ्रेंड्स। और फ्रेंडशिप जो तो मौत है, क्योंकि शेयरिंग और किसी से नहीं होता। अच्छा, इफ यू आर कंफर्टेबल इन बंगाली ना, यू टाइप इन बंगाली एज वेल, ठीक है? सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टोरी पे थे हम। वो मस्ट होगा। अच्छा, तो बेसिकली मोरलेस फ्रेंडशिप का वो एक सबका अपना अपना एक आइडियोलॉजी है जो हम देख पा रहे हैं, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के लिए अलग होता है। मतलब मेरी एक स्टोरी थी। आर यू गाइस आर अप फॉर अ स्टोरी? मतलब मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड तो मैं सुनाऊंगा। हेलो। हाँ सर, कोई बात नहीं। अच्छा, अरे नहीं सर, नहीं यार, फिर से बोल रहा স্যার हूँ। উড়িষ্যা ভাই, আপনি জাস্ট একটা কলেজের ইয়ে अच्छा, দাদা বলতে পারিস। तो स्टोरी, अच्छा स्टोरी गोज लाइक दिस कि फर्स्ट ईयर में मैंने बताया कि जब मैं पहली बार आया था, तो अकाउंट में पैसे आ गए, मम्मी पापा ने भेज दिए। पहली बार घर से बाहर था, एक बार में पैसे आ गए। तो मेरे को अचानक से जो एक्सपेक्टेशन होता ना फ्रीडम का, तो फ्रीडम मिल गया, अब पैसे भी हो गए। अब ना मैं एक्सक्यूज खोजने लगा कि कैसे करके ना आज रेस्टोरेंट चले जाते हैं, आज मूवी चले जाते हैं, आज कुछ ये घूम लेते हैं या वो खा लेते हैं। क्योंकि उस समय तो एक्सपेक्टेशन था, हमने सोशल मीडिया वाली लाइफ देखी थी कि रेस्टोरेंट्स में जाते हैं सीनियर्स, कॉलेज में मस्ती करते हैं। तो 15 दिन तो बड़े मजे से चलाइए। मतलब अगर खाना अच्छा नहीं भी है, अच्छा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रेस्टोरेंट चले जा रहे हैं या ऑर्डर करके खा ले रहे हैं। जब 15 दिन बाद ना क्या हुआ कि पैसे ना खत्म होने लगे। अब जब बीइंग फ्रॉम, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो जब मैं वेस्ट बंगाल शिफ्ट हुआ तो एक कल्चरल शिफ्ट है मेरे साथ कि हमारे यहाँ खाने का तरीका डिफरेंट है। रोटी और चावल एक साथ खाते हैं हम, और यहाँ आने के बाद या तो चावल मिलता है या तो रोटी मिलता है। तो एक दिन क्या हुआ ना कि सिर्फ वो मिला, चिकन मिला, और कुछ नहीं था। चावल था, मतलब ठीक ठाक नहीं था, और कुछ नहीं था। तो अब मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं क्या करूं। तो मेरा एक दोस्त था, फ्रेंडशिप कहाँ से आता है कि मेरा एक रूममेट हुआ करता था, फ्रेंड्स दोस्त नहीं बोल सकते, रूममेट हुआ करता था, 1 महीने हुआ था। तो बोलता है भाई चल ना ऐसा कुछ ट्राई करते हैं कि जिसमें पैसे भी कम लगे और हम लोग कुछ खा भी लें। तो तुम आप लोगों से पूछना चाहूंगा, किसी ने मूढ़ी और चिकन एक साथ खाया है क्या? मूढ़ी चिकन किसी ने एक साथ खाया क्या? ये कॉम्बिनेशन किसी ने ट्राई किया है क्या? অফ কোর্স ना, নট। नो, नेवर। अच्छा, नो नो नो, बिग আমিও नो। দাদা, আমিও এটা প্রথমবার শুনছি যে अच्छा, মুড়ি सुमी, আর ঠিক আছে। अच्छा सुमी मंडल सेड यस दादा। तो তুমি আচ্ছা, okay। प्रोबेबली उसने ट्राई किया। तो सरवाइव करने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अरे अच्छा, रानू मित्रा, तो यस सर, प्लीज डोंट बी से सर, আচ্ছা इट्स প্লিজ স্যার दादा বলিস ओनली না, भाई। দাদা বল সেটাই। दादा दादा, इट्स ओके। तो सर्वाइवल के लिए अच्छा है मुड़ी और चिकन, आप ट्राई कर सकते हो। फिर क्या हुआ कि अगले दिन फिर कुछ ऐसा हुआ, तो हमने अंडा लिया, डीम लिया, और मैगी के साथ स्क्रैम्बल करके बना के खा लिया। तो धीरे धीरे क्या होने स्टार्ट, ऐसा क्या स्टार्ट हुआ कि समझ में आने लगी चीजें कि नहीं, पैसा तो मेरे पास है, लेकिन उसको कैसे खर्च करना है वो मुझे समझना है। ठीक है, कैसे खर्च करना है, लोगों से कैसे मिलना है, और किसे क्या चीज को कैसे करना है, वो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। क्योंकि पहले 15 दिन मुझे भी नहीं समझ में आई थी।
इट्स टेक टाइम। तो सीधा सा हिसाब है कि जिंदगी में कभी भी ये सब ऐसा कुछ हो, फ्रेंड्स बनाना हो या फिर आपको किसी चीज को समझना हो, तो टाइम देना पड़ता है। क्योंकि जब आप स्कूल से सडनली निकल कर आते हो, शांतन जो तुम बोल रहे थे कि स्कूल से हम जब सडनली निकल के आते हैं ना, तो हमारी एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरे तो जैसे दोस्त थे वैसे ही दोस्त मिलेंगे। और कभी कभी हाँ, कभी कभी होता है कि किसी का इमेज कुछ और बन जाता है। जैसे मेरे साथ था कि मैं एनसीसी करता था, तो लोगों को मोस्टली मेरे से वो लगता था कि मैं थोड़ा एरोगेंट हूँ, मैं थोड़ा सा দাদা रूड দাদা हूँ। আমারও সেমই লাগতো এন্ড আই থিঙ্ক একটা একদম সেম জিনিসটাই আমারও লাগতো যে মনে আছে তুমি ওরিয়েন্টেশন ডে থার্ড ডে তে আই থিঙ্ক সো এনসিসি ক্লাব প্রেসিডেন্ট দিতে দিতে এসেছিলে। हम्म। হ্যাঁ তো প্রথম মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ তুমি বিশাল রুড হবে, বিশাল একটু ইয়ে হবে, বাট when I get to know you, মানে তোমার সাথে যখন কাজ করতে শুরু করলাম এই আর্টিস্ট সোসাইটিতে, তখন মনে হচ্ছে যে দাদা তো খুবই ফ্রেন্ডলি, দাদা তো খুবই ইয়ে, তো সেটাই একটা হ্যাঁ একটা পার্সপেক্টিভ ছিল। हेलो, हाँ। तो नहीं, वही ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इट विल टेक टाइम। बहुत लोगों को हुआ है मेरे साथ कि उनको लगता था कि मैं थोड़ा एरोगेंट हूँ, या मुझे भी लगा कि वो लोग ऐसे नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड आई गॉट टू नो देम। और फिर वी आर गुड फ्रेंड्स। मतलब जैसे मेरा रूममेट था, वो मेरे से 2 महीने डरता था, लेकिन फिर वी बिकम अ गुड फ्रेंड्स। तो तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जो स्टार्टिंग में आप लोगों को लगा हो कि ये तो रूड है, या तो ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर बाद में ही बिकम योर गुड फ्रेंड्स? आप लोगों के साथ ऐसा कुछ? बहुत बार। আচ্ছা और किसी के साथ? मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब बोलो यार। मतलब हम बात करना चाह रहे हैं, सीनियर देर तो সিনিয়রদের তো ভয় লাগে। वही लागे। अच्छा। এটা আমারও লাগতো यार, ফার্স্ট ডে যখন আমি কলেজে আসার আগে আমারও বিশাল লাগতো, বাট এখন ঠিক আছে, এখন এখন মনে হয় সিনিয়রদের সাথে একটা লাগবে না, আলাদা সিরিয়াস বন্ডিং তৈরি হয়ে সিরিয়াসদের গেছে। আমার ভয় লাগে না, মানিয়ে নেই। আরেকবার বলতে পারবি? फिर सर, বললাম সিনিয়রসদের সঙ্গে ভয় অতটা লাগে না, আমি ঠিক মানিয়ে নিই। আমি স্কুলেও যখন 11-এ গেছি, সিনিয়রসদের সাথে ঠিকভাবে মানিয়ে নিয়েছি, আলাদা কিছু আসে না। ইনভাইট করতে ভালো লাগে, দ্যাটস গুড। তাহলে তাহলে লাইক আমার অ্যাকচুয়ালি বলবো যে সিনে যাওয়াটা আমার একটু ভয় লাগতো। ফার্স্ট অফ অল আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি যে ফার্স্ট ডেতে আমি ভেবেছিলাম যে হ্যাঁ তোদের সবারই মনে হচ্ছে হ্যাঁ সিনে যে একটু মানে কেমন না কেমন হবে। তার মধ্যে আমি আমার মনে আছে আমি মেসে থাকতাম ফার্স্ট ইয়ারে। তো ওখানে লাইক আই থিঙ্ক সো ওই রুমে ওই মেসে আই থিঙ্ক সো 11 to 12 সিনিয়র্স ছিল, বুঝতে পারছিস তো? আর তার মধ্যে শুধু আমি আর আমার রুমমেট, আমরা শুধু জুনিয়র ছিলাম। তো একটা ঘটনা বলি যে ফার্স্ট নাইটে ওরা দাদারা আসে, তো বিশাল ভাবে ইন্ট্রোডাকশন নেয়। ইন্ট্রোডাকশন করতে সেই अच्छा, रानू मित्रा that मेरे साथ उल्टा हुआ था, मेरे दोस्त हाई स्कूल में मुझसे बात नहीं करते थे। আচ্ছা আচ্ছা अच्छा। संदीप देवनाथ, আমারও তো লাগে না ভয়, আচ্ছা मतलब আমার मेरे को भी হ্যাঁ, डर नहीं लगता। তাহলে ভালো। शायन सा भाई, कभी कभी कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के साथ हुआ है मेरे, पर बाद में वो लोग अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। हाँ, ওটাই मतलब সেম, वही है कि আমার সাথেও তাই হয়েছে। अल्टीमेट आंसर इसकी आपको टाइम देना होगा। क्योंकि जब आप कॉलेज में आते हो, स्कूल में आते हो, तो स्कूल से कॉलेज आते हो तो बहुत सारे डिफरेंसेस होती है। माइंडसेट का डिफरेंस होता है, बैकग्राउंड का डिफरेंस होता है, कल्चरल डिफरेंस होता है। तो उसमें आपको कुछ कॉमन खोजना है। तो बहुत सारे इन डिफरेंट चीजों में से एक सिमिलर चीज खोजने में टाइम तो लगता है ना दोस्त। तो टेक टाइम, टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। और ये टाइम देते देते ही आपको समझ में आएंगे कि लोगों की अहमियत क्या है। क्योंकि अगर आप टाइम का अहमियत देना स्टार्ट करोगे, तो आप लोगों का अहमियत देना स्टार्ट करोगे। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे बताया कि मूढ़ी और चिकन भी खा के सरवाइव कर सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड मैगी और अंडा भी खा के सरवाइव किया जा सकता है। रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है जब तक जरूरत ना पड़े। जिससे मैंने सीखा है कि वैल्यू फॉर मनी क्या है, कि अगर मुझे आज भूख लगी है तो मैं ये खाकर भी सरवाइव कर लूंगा। ये पैसे अल्टीमेटली मुझे ही काम आने वाले हैं, आज आए या कल आए, अल्टीमेटली तो मुझे ही काम आने वाले हैं। तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुमसे कभी ऐसा फील हुआ हो तुमको कि तुम आउट ऑफ द बॉन्ड जा रहे हो, या फिर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ हो? क्योंकि तुम भी तो मेस में, हॉस्टल में रहते हो। हाँ मैं मेस मेस में में या रहता हॉस्टल था। में? हाँ तो
ফার্স্ট অফ অল जैसे যেটা যেরকম বলছিলাম যে ফার্স্ট ডেতে এসে একটু সিনাতে একটু ভয় ছিল যে কেমন না কেমন হবে ইয়ে হবে। তো ফার্স্টলি হ্যাঁ দে ওয়ার রাফ কাইন্ড অফ রাফ, বাট তারপরের দিকে আমি বলতে পারি যে দাঁড়াটা আমার সব থেকে বেশি মানে একটু রাফ ছিল সেই দাঁড়াটাই সাথে লাইক হি ওয়াজ লাইক ব্রাদার টু মি। পরের দিকে লাইক যখন দাদা যখন পাস আউট করবে কলেজ থেকে হি ওয়াজ লাইক মাই ব্রাদার। মানে আমার রুমমেটও ছিল, তার সাথে মানে আমি কোনোদিনই প্রথমে রুম শেয়ার করিনি কারোর সাথে, আমি জানতাম না কেমন হবে কি না হবে, বাট রুমমেটের সাথে একটা ভালো রকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হয়ে যায় পরের দিকে। অ্যান্ড রুমমেটের কাছে অনেক কিছু জিনিস শিখেছি যে লাইক আমি জানতাম না যে এক্স্যাক্টলি কাপড় কি করে কাচতে হয়। আমি সত্যিকার বলছি এই স্কুল লাইফে হ্যাঁ জানতাম না হ্যাঁ জলের মধ্যে যে সার্ফ দিয়ে কিছু, বাট হি দেন টোল্ড মি দেখ थोड़ा थोड़ा सर्फ दे, थोड़ा पानी दे, देन थोड़ा रख दे। एंड एंड वन थिंग ही यूज्ड टू कुक, ও ভালো রান্না করতে পারতো। এন্ড একটা ঘটনা বলি যে একদিন কি হয়েছে, মেসে মাসি আসেনি তো, এন্ড পকেটে টাকাও নেই, অ্যাকাউন্টে টাকাও সব শেষ হয়ে গেছে। তো দেন হি কাম আপ দ্যাট চল কিছু একটা বানাই, চল কিছু একটা বিয়ে করি। তো অ্যান্ড সেখানে আমি তখন কিছুটা কুকিং কিছুটা জানতে পারি। আই থিঙ্ক মনে আছে আমার ফার্স্ট কুকিং ছিল হচ্ছে ভাত বানিয়েছিলাম, ডাল বানিয়েছিলাম, আলু সিদ্ধ বানিয়েছিলাম। তো আই থিঙ্ক তোরা তোরা তো আচ্ছা তোদের জিজ্ঞেস যে কারা কারা তোরা রান্না করতে পারিস বা লাইক এখনো শিখছিস। তোরা চ্যাট বক্সে উঠতে পারিস বা মাইক অন করে বলতে পারিস। আচ্ছা শিখছি একটু একটু, দ্যাটস গুড। আমি অল্প অল্প, দ্যাটস ভেরি গুড। কারণ ভাই কুকিং শেখাটা সত্যিকারে খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি পরে কলেজে উঠে বুঝতে পেরেছি। দ্যাটস গুড। সন্দীপ তুই পারিস খুবই ভালো ভাই, খুবই ভালো। পরের দিকে ভাই এটা বলছি সত্যিকারে ইটস ক্যান বি আ লাইফ সেভিং লাইক স্কিল। যখন মাসি আসবে না তখন লাইক যখন টাকা শেষ হয়ে যাবে না তখন বুঝতে পারবি না যে বাড়িতে জিনিসপত্র আছে, সবজি সবই আছে, বাট আমি ইয়ে করতে পারছি, রান্না জানি না। আচ্ছা আমি পারি, দরকার পড়লে যতটুকু দরকার ততটুকুই পারি। সেটাই একদম ভালো, খুবই ভালো। তো আমি এখনো শিখছি বেসিক্যালি, এখন একটু চিকেন টিকেন পারি একটু। তো এই যে একটা জিনিস বলেছি যে দেখ কলেজে উঠে না ভেবেছিলাম যে হ্যাঁ লাইক টাকা না মানে মাসে বেশি না আসলে বা খাবার ভালো না লাগলে আমি অ্যাটলিস্ট মানে আই ক্যান অর্ডার ফুড অর মানে গো আউট অ্যান্ড হ্যাভ ডিনার ফ্রম সামওয়্যার এলস। তো এভাবে দেখছিলাম যে না যে আমার টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছিল। অ্যান্ড তুই জানিস যে মান্থের শুরুতে ইউ উইল গেট সাম অ্যামাউন্ট অফ মানি, তোকে প্যারেন্টসরা কিছু একটা টাকা দেবে, সেটা দিয়ে তোকে মানে হাত খরচা চালাতে হবে, সবকিছু চালাতে হবে, হাউস রেন্ট, ফুড রেন্ট, সবকিছু। অ্যান্ড একটা ইনসিডেন্ট মনে আছে, একটা ফ্রেন্ড ছিল আমার, তো এভাবে না ও মানে আমার থেকে আরো বেশি লাইক স্পেন্ড করতো। কোনো সময় দেখছি যে মুভিজ দেখছে বিশাল ফ্রাইডে টু ফ্রাইডে, কোনো সময় দেখছি যে লাইক মানে খালি বাড়ি থেকে অর্ডার দিয়ে খাচ্ছে। তো একদিন মানে আই থিঙ্ক ফার্স্ট মান্থে লাস্ট উইকে এসে বলছে দেখ ভাই আমার তো টাকা শেষ হয়ে গেছে, বাবা মার কাছ থেকে চাইতে পারছি না, তো কি করব। তো আমি হ্যাঁ তখন দিয়ে দিয়েছিলাম, বাট এটা জিনিস তখন বুঝছিলাম যে হ্যাঁ টাকাটা বাঁচিয়ে রাখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেভিংস করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এন্ড তখন একটা জিনিস হচ্ছে যে হ্যাঁ ইউ হ্যাভ টু মেক আ চয়েস। লাইক আমি এন্ড গেম দেখবো আর এন্ড অফ দ্য মান্থ আমি হচ্ছে সেই অর্ডার করবো না, একদম বাড়িতে খাবো, সেটা একটা জিনিস না। তুই সেই ফিল্মটা না দেখে তুই অ্যান্ড রেস্ট অফ দ্য মান্থ তুই সেই অর্ডার করলি, সেটা ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য চয়েস। তুই ফিল্ম দেখবি না তুই মানে কোথায় কোথায় সেভিং করবি, কোথায় কোথায় স্পেন্ড করবি, সেটা তোর উপর। তো আচ্ছা সুপন্দা আমি তোমাকেও জিজ্ঞেস করছি যে লাইক তুমি কি করে মানে সেভিংটা করছি, যে হাউ ওয়াজ ইউর অ্যাপ্রোচ টু সেভিং, লাইক মানি ম্যানেজমেন্ট কি করে তুমি করেছো? আমার তো বিশাল প্রবলেম হতো, বাট हाँ शांतन पहले तो ये सोमी मंडल लिखना है कि आगे दिन चिकन रन्ना करेছিলাম আমি। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड गोइंग। हम मैं बोलूंगा कि ये एक अच्छी शुरुआत है। ভালো ভালো यू आर बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट, जो कॉलेज में काफी काम आता है।
तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और देखो जैसे साइंटन ना, सिर्फ ये चीज इसलिए भी नहीं होती है ना कि हम चीजें समझ नहीं रहे, कभी कभी क्या होता है ना कि इन्फ्लुएंस होके, मतलब आस पड़ोस के लोगों से भी हम इन्फ्लुएंस होके कुछ चीजें करते हैं। जैसे कि एक फोन मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने वो फोन खरीद लिया क्योंकि मेरे सारे दोस्त खरीद रहे हैं, या मेरे सारे दोस्तों को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे हैं, तो फिर मुझे बुरा फील हो रहा है, या फिर मुझे सारे दोस्त कहीं गए हैं या कोई कहीं गया है, उनको देख के मैं जाना चाह रहा हूँ। तो ये भी चीजें होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें शायद नहीं भी करना चाहते, बट अगल बगल के लोगों की वजह से करते हैं। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है क्या कि अगर आप चाह रहे हो कि ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोस्त कर रहे हैं या फिर अगल बगल वाले लोग कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है क्या? क्योंकि मैंने तो बहुत किया है, बहुत किया है, ओवर पीरियड मैंने बहुत किया है ऐसा। अच्छा किसी का मैं, हाँ अनेक बार হয়েছে, পিয়ার প্রেশার होता है वो चीज। हाँ ईशा मजुमदार बोलते हैं हाँ अनेक बार হয়েছে, मेरे साथ भी होता है। अमर तो तोरा माइक ऑन করে বলতে পারিস। हाँ अमर तो थैंक यू। हाँ तुम लोग माइक ऑन करके बोल सकते हो। বাট মাইক অন করে বেশি ভালো হয় একটা। হুম আর নয়তো মনে হবে যে আমি আর সুকুন ভাইয়া শুধু নিজেদের মধ্যে কনভারসেশন করে যাচ্ছি। আর বাই দ্য ওয়ে ভিডিও অন রাখতে পারি, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा ईशा मजुमदार क्या हुआ था, मतलब तुमने क्या किया ऐसा कुछ, इफ तुम हम सबों के साथ शेयर कर सको तो इट विल बी ग्रेट। अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो हमारे साथ प्लीज शेयर करो। लाइक एनी पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक कोई भी एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम सब यहाँ पे मिलकर एक स्टोरी सुन रहे हैं एक दूसरे का। इट्स लाइक कि हम एक स्टोरी सुनाएंगे, आप एक स्टोरी सुनाओ, स्टोरी का एक कलेक्शंस बनाएगा जो ओवर अ पीरियड एक अच्छी मेमोरी बनेगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट यू कि आप शेयर करो हमारे साथ। ईशा मजुमदार अगर आप वहाँ हो तो प्लीज। लाइक माइकेর একটু ইস্যু থাকলে চ্যাট বক্সে বলতে পারিস, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू। माइक चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, नो नो इशू, आप चैट में भी बोल सकते हो। हेलो हेलो, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन था, हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड। प्लीज आस्क। बात यह है कि जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं वहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, या फिर खाना, तो सबके साथ ये होता है जब हम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो शायद आपके साथ भी हुआ होगा, तो आप कैसे हैंडल किया वो सब? लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा इफ यू डोंट माइंड कि 2 से 4 मिनट प्लीज रुक जाओ। ये क्वेश्चन हम उस टॉपिक पे आएंगे तो वो आंसर कर देंगे, और बी श्योर कि एट द एंड ऑफ द डे हम ये क्वेश्चंस का आंसर आपको जरूर देके जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा थैंक यू। मेरा एक हाँ किस्सा है। हाँ प्लीज। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उस समय तो मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है मेरे बाल, मेरे सिर का बाल। पर ये मेरे 4 दोस्तों ने मैंने टकले हो गए, तो उसे देख के मैं भी हो गया। আচ্ছা 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 পুরো ট্রেন্ড ছিল না, আই থিংক সো, কোনো ট্রেন্ড ছিল একটা কিছু একটা। अच्छा আচ্ছা হ্যাঁ अच्छा ईशा मजुमदार का कुछ मैसेज आया सैंतन कि আচ্ছা ক্লাসের সবাই প্রায় অ্যানসার দিত কোয়েশ্চেন, সেটাই দেখে আমিও দিয়েছিলাম, বাট আনফরচুনেটলি ভুল হয়েছিল। সো এরকম অনেক কিছু দেখ, এখানে তুই অ্যানসারটা দিলি, দ্যাটস আ ভেরি গুড থিং। মানে অ্যাটলিস্ট মানে কিছু তো অ্যাটলিস্ট ট্রাই করলি। হ্যাঁ অনেক সময় হয়, দেখ আমি একটা টিচার আমাকে কোয়েশ্চেন করলো, হ্যাঁ আমি অন্য একটা অ্যান্সার দিলাম, সেটা হতেই পারে, দ্যাটস কমপ্লিট নর্মাল। স্টিল তুই অ্যাটলিস্ট তুই ট্রাই করলি, ইউ অ্যাটলিস্ট অ্যান্সার দ্যাট কোয়েশ্চেন, দ্যাটস আ ভেরি বিগ থিং। अच्छा बहुत लोग करते हैं। तो देखो ना, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें बहुत चीज नहीं करना होता है, फिर हम वो करने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि देखो जैसे क्या होता है कि उसके बाद फिर आप बहुत सारा चीज खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दो, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आप लूज करने लगते हो। जैसे अभी देखो स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, जो साइकोलॉजिकली चेंज होती हैं। कि कॉलेज जाके एक मेरी गर्लफ्रेंड हो या फिर किसी दोस्त की एक गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो वो दिमाग में आ जाता है कि यार मुझे भी बनाना चाहिए, मैं भी एक बना लूं क्या। हाँ, और फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग अगर कमेंट कर रहे हैं मेरे पे, अरे तू तो बहुत पतला दुबला है, खाना वाना खाया कर। कोई अगर हेल्दी है, बहुत ज्यादा चबी है, तो अरे ये तो हाथी के जैसा खाता है। कैसे आपने बनाई, क्या आपने बनाई। अच्छा आई विल आंसर दैट क्वेश्चन फॉर श्योर।
तो ये सारी चीजें ये तो मेरा बदल हो गया एट द भैया। एंड आई विल आंसर दिस। ठीक है, तो क्या होता है कि ये सारी चीजें होना स्टार्ट करती हैं जो सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से होता है, किसी के बोलने की वजह से हम ये सोचना स्टार्ट करते हैं, और फिर इसकी वजह से हमारा अगर हम सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, तो फिर हम अगर अनसक्सेसफुल हो गए तो फिर खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ लोग होते हैं ना कि इस समय में आपका गलत फायदा भी उठाएंगे, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि जब आप बाहर जाओ तो हर कोई आपके मम्मी पापा की तरह बिहेव करे, जब भी आप कुछ गलत करो तो आपको रोके, ऐसा कभी नहीं होगा। लोग तुम्हें धक्का मार के ही निकलेंगे, कुछ लोग आपको गड्ढे की तरफ भी खींचेंगे। तो ये चीजें एडिक्शन की तरफ भी चले जाती हैं, बहुत लोग गलत चीजें भी चले जाते हैं। तो व्हाट आई फील कि ये सारी चीजें अल्टीमेटली गर्लफ्रेंड होना नहीं होना, मेरा पतला होना मोटा होना, मेरा एडिक्टेड होना नहीं होना, ये ज्यादा कभी मैटर नहीं करता। क्यों शांतन, तुमको क्या लगता है कि ये कहीं मैटर करता है या मेरा वर्थ ज्यादा मैटर करता है? आप तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारा वर्थ ज्यादा मैटर करता है कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम्हारा पतला होना मोटा होना, एक गर्लफ्रेंड होना बॉयफ्रेंड होना, या फिर किसी चीज को लेकर एडिक्टेड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? তোদেরও অ্যাটলিস্ট জিজ্ঞেস করছে, বাট এমন কিছু হয়েছিল যে মানে কেউ একটা কিছু কিছু নিয়ে বলেছিল রিলেটেড টু ইওর বডি অর মেবি সামথিং এলস, যে একটু বেশি ইয়ে বলেছিল, ইউ ফিল স্যাড অ্যাবাউট ইট, তো মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ এরকম করে কি করে বলে দিল, আমার তো নিশ্চয়ই, আমার তো তাহলে কিছুই করতে, আমি ওয়ার্থলেস। কারো অনেক সময় হয় যে মানে কেউ বলে যে হ্যাঁ হ্যাঁ তুই তুই তো মোটা, তুই কোনোদিন পাতলা হতে পারবি না, তখন আমি অনেকজনকে দেখেছি যে হ্যাঁ লাইক মানে নিজে অ্যাটলিস্ট ডাউন হতে থাকে, হ্যাঁ পাতলা হতে পারবো না, ইয়ে হতে পারবো না, এত কিছু। তো সেরকম তোদের কাছে জিজ্ঞেস করছে এমন কিছু হয়েছে লাইক কেউ থেকে বুলি করেছে কোনো একটা জিনিস নিয়ে, লাইক বডি শেমিং এন্ড অল, স্কুলে এখন বা आउटसाइड? या तुम लोगों ने कुछ ऐसा किया हो जैसे कि सामने वाले को अच्छे मार्क्स आ गए तो यू वाज की और अपसेट, मेरे को भी क्यों नहीं आया, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट, या किसी ने अच्छा फोन ले लिया, किसी ने कुछ भी अचीव कर लिया उसको लेके बुरा लगना, या फिर सिर्फ प्रेशर में कुछ ऐसा करना? जैसे संदीप देवनाथ ने मैसेज किया कि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी देनी पड़ती हैं दोस्तों के लिए, खुद से ही आ जाता है, क्या करे, दोस्ती का सवाल है। सो देखो चीजें अगर दोनों तरफ से हो तो बेहतर है, सिर्फ आप करे जा रहे हो इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपके पास आज 50 रुपए हैं, आप खर्च कर पा रहे हो, और इस डर से कि कल मेरे पास नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, खुद को आप क्रिटिसाइज करने लगोगे तो वो खुद में आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगा। तो वो कह देना ज्यादा जरूरी होता है, आपका इंपॉर्टेंस, आपका वर्थ ही सबसे ज्यादा मैटर करता है और कुछ नहीं। और टाइम, जब जितना आप खुद को टाइम दोगे आपको अपना वर्थ समझ में आने लगेगा, जितने आप चीजों को एनालाइज करना शुरू करोगे आपको चीजें समझ आने लगेंगी। तो जो मैंने शुरू में भी कहा था कि यू हैव टू गिव टाइम, टाइम इज अ ग्रेटेस्ट हीलर। मतलब होता है ना कि थोड़ा सा रुक के संभल के सबर करो, जरा सबर करो, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग है सबर करो। तो यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। शांतन, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंसेस रहा है इन सब चीजों को लेके? मतलब तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि यू वाज बुलेड एंड ऐसा कुछ? अच्छा मैं तो ज्यादातर बुली नहीं हुआ, पर मेरे कॉलेज में मैं क्लास में एक लड़का था, একটা আমার মনে আছে, এন্ড হি স্টিল নাও মাই ভেরি ওয়ান অফ মাই ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ডস। তো ওর একটা প্রবলেম ছিল যে একটা আলাদা বেঙ্গলি অ্যাকসেন্টে কথা বলতো। আই থিঙ্ক তোর বুঝবি না যে বাংলা ভাষা একটা বলে না, যে আলাদা একটা অ্যাকসেন্টে কথা বলে। তো হ্যাঁ, তো ও সেটাতে বলতো, সেটা নিয়ে মানে ওকে সবাই অভিযোগ করতো। মানে আমি শুনেছি, এবং ওর ইংলিশও ভালো ছিল না, ও কোডিংও তেমন ভালো পারতো, এই জন্য ওকে অনেক মানে সত্যি করে বলবো সত্যি ভালো রকম ও মানে ওকে বুলি করা হতো। বাট ও কিন্তু সেই জিনিসটা নিজের মধ্যে নেয়নি। ও পুরো প্র্যাকটিস করেছে, কোডিং প্র্যাকটিস করে করে করে, তারপরে এই ইংলিশে কথা বলা, কমিউনিকেশন স্কিল এত প্র্যাকটিস করেছে। এন্ড আমি বলতে পারি এখন নাও হি ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রেজেন্টার্স ইন আওয়ার ক্লাস। বাট একটা জিনিস, ও কিন্তু নিজে বাংলা অ্যাকসেন্ট কিন্তু ছাড়েনি, বাংলা অ্যাকসেন্ট ছাড়েনি। তো সেটা মানে একটা বুঝতে পারি যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা নিজের একটু কাছের থাকে, বাট হি ডিডন্ট লাইক ওটা, হ্যাঁ ওরা বলছে যে এরকম আমার অ্যাকসেন্ট, বাট আমি একটু চেঞ্জ করে ফেলি, সেটা কিন্তু না। হ্যাঁ, ও নিজেকে সেলফ ইমপ্রুভ করার জন্য একটা ভালো মানে একটা কমিউনিকেশন স্কিলও গ্রো করেছে। ও লাইক ও কোডিং খুব এখন খুব ভালো হয়েছে। तो शेट एंड अच्छा, रानू मित्र हैज सेड मुझे भी एक बार किसी ने चबी कहा था, उसके बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया एंड लॉस्ट 6 kg इन 3 months।
আচ্ছা, দ্যাটস গুড, দ্যাট খুবই ভালো করেছি, অ্যাটলিস্ট ওয়ার্কআউট কর। বাট अच्छा रानू मित्रा मतलब हेलो हेलो आई एम ऑडिबल? शांतन सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? सुनाई अच्छा रानू क्या वो तुमने खुद के लिए करा था या कि जस्ट बिकॉज उसने बोल दिया था इसलिए करा था? यू रियली यू वांटेड टू डू दैट कि मतलब तुमने सिर्फ किसी को ताने की वजह से करा था? खुद के लिए। सो प्लीज सर मत बोलो, भैया बोल सकते हो, दादा बोल सकते हो, प्लीज डोंट सर, हम लोग सर नहीं है। ओके खुद के लिए मतलब उसके बोलने से पहले यू हैड प्लान्स और नॉट कि मतलब कि मैं वर्कआउट करूंगी, जस्ट उसके ट्रिगर करने की वजह से तुमने करा था, ऐसा कुछ था क्या? किसी और के लिए खुद को क्यों चेंज करो? एग्जैक्टली एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू से दैट, খুব ভালো কথা বলেছিস कि किसी और के लिए खुद को क्यों चेंज करूं? सही बात है एकदम। जो आपको खुश करता है वो चीज आप कर सकते हो, उसके लिए आपको कितना जो भी सैक्रिफाइसेस देना पड़े तुम दे सकते हो। और पहले तो आई एम वेरी सॉरी मेरा करंट नहीं है, सो आई एम नॉट विजिबल, तो पार्डन फॉर दैट। एंड आप दिख रहे हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट हो गया तेरा कैमरा। अब ठीक है। अच्छा अच्छा आप लोगों का और कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस रहा हो पीयर प्रेशर की वजह से, या फिर अपने कॉन्फिडेंस लूज करा हो, या फिर किसी ने आपको किसी और तरफ खींचा हो? योर वर्ड्स आर इनफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सो बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, हाँ আমি গ্রামের ছেলে চাকদাতে গিয়ে অনেক মডার্ন জিনিস অ্যাডাপ্ট করতে পারিনি ফার্স্টে। স্কুলে গিয়ে স্যান্ডন ক্যান ইউ হেল্প মি অনেক আউট? সময় হয়তো নিজেরই এম্বারেসিং লাগে, বাট আই ডিডন্ট কেয়ার, অলওয়েজ অন মাই ওন ওয়ে, ধীরে ধীরে অ্যাডাপ্ট করে ফেলেছি সব। একদম ঠিক বলেছিস। অনেক আমার ক্লাসমেটের অনেক একজন আছে যেরকম মানে ডিফারেন্ট পার্টস অফ প্লেস থেকে এসছে, বাট প্রথম দেখুন হ্যাঁ ওদের ছিল, ওদের আমি কি বলবো, ওদের লাইফস্টাইল একটু আলাদা রকম ছিল, ওদের লাইক ওদের একটু ভাষাটা একটু আলাদা রকম ছিল, বাট দে ডিডন্ট চেঞ্জ। ওরা আস্তে 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 নিজেকে ওই কি বলবো ওই পরিবেশের সাথে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছিল। অফকোর্স আমাদের যে কলেজ সেটা একটু টাউন টাইপ ইয়ে, তো সেখানের সাথে হ্যাঁ বুঝতেই পারো অনেক সময় যারা ভিলেজ থেকে আসে তাদের একটু মানিয়ে নিতে, একটু অ্যাডাপ্ট করতে একটু টাইম লাগে। সেটাই বলছি, টাইমটা ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা দাদা, একটা কথা আমারও মাথায় এসেছিল যে তুমিও তো অ্যাকচুয়ালি মানে একটা আলাদা জায়গা থেকে, ইউ আর ফ্রম বিহার রাইট? তো তোমার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ নিশ্চয়ই ব্যারিয়ার। उत्तर प्रदेश। हेलो हाँ मतलब शांतन हम उत्तर प्रदेश के लिए। अच्छा उत्तर प्रदेश। ठीक है अच्छा। तो चीज क्या हुई ना, जैसे अभी संदीप देवनाथ ने बोला ना कि अडेप्टेबिलिटी, मैंने अडेप्ट करना शुरू किया, तो अडेप्टिंग थिंग्स इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब जब आप किसी चीज को अडेप्ट करना शुरू करते हो ना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ओवर ए पीरियड आपको अडेप्टेबिलिटी ही एक ऐसा चीज है जो आपको एक सस्टेनेबल लाइफ की तरफ लेके जाएगी, एक स्ट्रेट लाइफ की तरफ लेके जाएगी। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मेरे को नहीं आता था बंगाली बोलना, और मेरे को बहुत हेजिटेशन होता था इस चीज से। फिर मैंने धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया ना कि मूढ़ी चावल, और फिर वो वाला अगेन खाना वाला एग्जाम्पल तुमको दिया, रोटी और वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन। तो इट वाज ऑल अबाउट अडेप्टेबिलिटी। मैंने चीजों को अडेप्ट करना शुरू किया वहां से, चाहे वो मतलब मेरे जैसे लड़के को जिसे बंगाली का भी नहीं आता था, 4 साल के बाद मैं इतना कैपेबल हूँ कि आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो इट्स कहीं ना कहीं ये है कि मैंने चीज़ों को अडेप्ट करा है। दूसरा, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को अपने हिसाब से चुना है, मुझे क्या चाहिए था वो मैंने चुना, मतलब वैल्यू किसकी कितनी देनी चाहिए, प्रायोरिटाइज किया है चीज़ों को अपने हिसाब से। तो वो बोलते हैं ना कि बी द कैप्टन ऑफ योर ओन लाइफ। आपको अपने लाइफ का कैप्टन खुद बनना पड़ता है, और आपको अपने लाइफ की अडेप्टेबिलिटी, चेंजेस, सब कुछ आपको खुद ही बनानी पड़ती है, क्योंकि कोई और आके नहीं बोलता कि भाई ऐसा कर लेते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके साथ काफ़ी प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो जब नया नया आया था तो उसको ना लोग बहुत चिढ़ाते उड़ाते थे, ऐसा वैसा करते थे, तो वो ही वॉज नॉट एबल टू अडेप्ट थिंग्स। वो खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, मतलब खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा था, उन लोगों की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। बट ओवर अ पीरियड ही अडेप्टेड थिंग्स, और ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो अडेप्टेबिलिटी टाइम देने से ही आएगी, और जब तक आप चीज़ों को अडेप्ट करना नहीं शुरू करोगे, चीज़ें चेंज होना नहीं शुरू होंगी। तो धीरे धीरे करके ही सब होता है।
मतलब वो कबीरदास की एक कहावत है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे। হ্যালো, আই থিঙ্ক সো। আচ্ছা, দাদার মানে একটু নেট কানেকশন একটু প্রবলেম হচ্ছে না। আচ্ছা, তো বেসিক্যালি আচ্ছা একজন যেটা বলছি না যে মানে এটা একটা জিনিস রানু খুব ভালো বললি যে खुद किसी और के लिए खुद को क्यों चेंज करे। তো সেই জিনিসটা তো বলবো। আচ্ছা, কিছু বলছিস? না না এটাই ওকে, তো এই জিনিসটা বলবো যে দেখ আমি অনেকজনকে দেখেছি, হ্যাঁ কলেজে এসে গার্লফ্রেন্ড হয়েছে, তারপরে মানে তারপরে দেখি ওয়ার্কআউট করছে, মানে আলাদা রকম নিজেকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে। তো সেটা আমি বলবো যে দেখ মানে কেউ তোকে কিছু একটা বললো তার জন্য নিজের ওয়ার্ডসটা কমে যায় না। একটা লাইক মানে কেউ একজন তোকে মানে বডি শেম করলো বা কিছু করলো, তাই বলে নিজেকে ছোট না করে সেটা আমি একজন সেই আমার নিজের ফ্রেন্ডের কথাই বললাম যে হ্যাঁ ও মানে কিছু ছাড়েনি, ও একটা লাইক আগে বিশাল ও ভয় পেত, হ্যাঁ যে এই ইংলিশ বলতে ইয়ে করতে, এখন ও অনেকটাই কনফিডেন্ট। অ্যান্ড আমারও একটা জায়গায় ছিল যে হ্যাঁ আমি আমার স্টেজ ফিয়ার হতো, তো স্টেজে গিয়ে যে এতজনের সামনে বলা এটা একটা আমার একটা মানে কি বলবো একটা অ্যাংজাইটি হতো। তো এই আর্ট এন্ড লিটারেচার ক্লাব থেকে একদিন ম্যাম বললো যে দেখ একটা মেয়েদের একটা নাটক আছে, তো ইফ ইউ ওয়ান্ট ডু ইট অর নট। তখন মাথায় করছি যে আচ্ছা ড্রামা করতে হবে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য হোল কলেজ। আমি ডায়লগ কোনোদিন আমি অ্যাক্টিং করিনি, ডায়লগ কি করে ডেলিভার করবো, লাইক আর কোনো কিছু যদি ভুল হলে কিছু একটা লাইক হয় না একটা মাথায় চলে যে হ্যাঁ কিছু একটা ভুল বললে কিছু মানে যদি আমি যে লাইন যদি ভুলে যাই তাহলে আই উইল বি স্টাক, মানে সবার মাথায় একটা চলবে আচ্ছা কি এটা অ্যাক্টিং করতে পারে না এতজনের সামনে। বাট তারপরে হচ্ছে যে লেটস ট্রাই, একটা ওয়াই নট একটা ট্রাই করে দেখি না, একটা লাইক ফার্স্ট অফ অল একটা মানে একটা অ্যাংজাইটি হচ্ছে, লেটস ফেস ইট। তো তারপরে আমি রিহার্সালস করি, তারপর আমি অনেক রিহার্সালস করে 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 অ্যান্ড এটা বলতে পারি যে যেদিন ইয়ে ছিল যেদিন আমাদের ড্রামা একদম ফাইনাল ডে ছিল, ইট ওয়েন্ট পারফেক্টলি স্মুথ অ্যান্ড লাইক কোনো কিছু ভুল যায়নি। আমি যেটা ভাবছিলাম যে মানে এত কিছু জিনিস এত কিছু ভুলে যাবো ইয়ে হয়ে যাবে, বাট এটা একদমই হয়নি, কিছুই হয়নি। হ্যাঁ আচ্ছা একটা চ্যাট আই এম সো সরি তোর মাঝখানে। আচ্ছা তোরা আমাকে দেখতে পাচ্ছিস তো সবাই? সবাই দেখতে পাচ্ছিস আমাকে? হ্যাঁ তুই আছিস ওকে ওকে থ্যাংক ইউ আর আমাকে ভুলে যাচ্ছিস তো অনেকক্ষণ আমি আসি না, আমাকে ভুলে টুলে যাচ্ছিস না তো? যাই হোক আমিও কিন্তু আছি তোদের সাথে। যাই হোক আচ্ছা এখানে একটা ইউ ওয়ন্ট বিলিভ দিস স্টেজ ফাইট আমার এখনো হয়। তোকে তাহলে আমি আচ্ছা এইটার অ্যান্সার দেবো তার আগে বলছি যে অনেকক্ষণ দেখলাম তোরা সবাই শুধুমাত্র চ্যাটে লিখছিস কেন রে? তোরা তো সুন্দর বলতে পারিস, ভাই বলতেই পারিস, ভিডিও অন অডিও সবকিছু করে একটু শুনি আওয়াজটা কেমন লাগছে। আচ্ছা তো আমি হচ্ছে একটা কথা বলতে পারি যে আমি যখন আমি কলেজে আসি তখন কি হয় যে আমাকে এরকম হচ্ছে শান্তন যেরকম বলে সেরকম আমাকেও বলেছিল যে অমর্ত্য তোমাকে একটা নাটক করতে হবে। হ্যাঁ নাটক আমি করতে খুব ভালোবাসি এরকম কিছু ছিল না, আমি এরকম অত ভালোবাসতাম না, কিন্তু হ্যাঁ ওই লোকের সামনে হচ্ছে কিছু বলবো সেই জিনিসগুলো আমার করতে খুব ভয় লাগতো। কিন্তু একটা জিনিস আমি তো সবাইকে বলি যে আমি একটা এরকম একটা মিটিং ছিল সেখানে আমি ছিলাম, তো সেখানে একটা স্পিকার ছিল, তো সেই স্পিকারটা বলেছিল আসো সবাই যেখানে আসো স্টেজে এসে কিছু একটা তোমার সম্পর্কে বলো। তো আমরা সবাই চুপ করে আছি, তো নিজের সম্পর্কে বলাটা তো খুব কঠিন না, মানে আমি সারাদিন নিজের সম্পর্কে বলতে পারি সেটা খুব একটা কঠিন না, এটাও বলেনি যে 5 লোকের সম্পর্কে বলো, নিজের সম্পর্কে বলো বলেছে। যাই হোক তো আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি এরকম করে, মানে বুঝতে পারছি কি হচ্ছে, আমাদেরকে বলছে নিজের সম্পর্কে বলতে আমরা দাঁড়িয়ে আছে না আমি নিজের সম্পর্কে বলতে পারবো না, হতে পারে নিজের নাম পাশের নামটা বলে দিলাম, এরকম কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। যাই হোক তো এরকম আমাকে তখন স্যার তখন সবাইকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছিল, সে কেন আসবে স্টেজে, বলছে সে কেন আসবে স্টেজে, এইটা তো 440 বলছে কারেন্ট খাবে না। সেদিনকে মনে হয়েছিল দেখি না যে কারেন্টটা খাই কিনা। আর তারপর আমি কলেজে গেছিলাম, কলেজে যাওয়ার পর সেই স্টেজে দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে বিশ্বাস কর এইটুকু কারেন্ট পেলাম না। বলে না
দেখি না কি হয়, কেউ খেয়ে ফেলবে না তো। আর একটা কথা এইটুকু সবসময় মনে রাখবি, যারা অডিয়েন্স আছে না, যারা অডিয়েন্স তারা মনে রাখবি তারা আগে তোর মতো ছিল, তুই কিছু একটা আলাদা করছিস তো। আচ্ছা আমাদের সঙ্গে তো আরেকজন আছে মঞ্জিত। মঞ্জিত তুই একটু বল না তোর ফিয়ার ব্যাপারটাকে দিয়ে। আচ্ছা মঞ্জিত আগে ইন্ট্রোডিউস করে দিস, দেখতে পারি না। না না, আমিও আছি এখানে, তোদের সকলের সাথেই আছি। হ্যাঁ, ফিয়ার বলতে গেলে সত্যি কথা, আমারও এই সেম প্রবলেমটা ছিল। এবং স্টেজ ফ্রাইট মানে আই হ্যাভ বিন ডান্সিং মানে ফর 14 ইয়ার্স নাও, বাট এখনো আমার স্টেজ ফ্রাইট হয়। আমার কারোর সামনে গিয়ে কিছু একটা বলতে হলে মনে হয় যে না, হবে না, আমার মুখ থেকে তো কথা বেরোবেই না, বরঞ্চ ভুলভাল কিছু বেরিয়ে যাবে, তার থেকে ভালো নাই বললাম। আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি বেটার। বাট এই জিনিসটা আমাকে, আমি জানি না অমল তোর মনে আছে কিনা, তোর সাথে আমার কথা হচ্ছিল যখন এটা আমি ডিসকাস করেছিলাম, তুই আমাকে বলেছিলি, এবং এটা খুব সত্যি কথা যে ধর আজকে তুই ক্লাসে কিছু একটা মানে টিচার কিছু একটা তোকে জিজ্ঞাসা করলো তোদের কাউকে, এবং তোরা কিছুক্ষণ ভাবছিস যে না আমি কি উত্তরটা দেব, বা আমি উত্তরটা দিলে কি আমার পাশের বন্ধুরা আমাকে দেখে হাসবে, তাই আমি উত্তর দেবো না, দরকার নেই। তো আম, তো ওই ওই মানে মুহূর্তে না একটুখানি একবার উত্তরটা না বলে দেখবি। কারণ অমত যেরকম বলো, কেউ তো কামড়ে দেবে না বা কেউ বকাবকিও করবে না, আর যারা ইনফ্যাক্ট হাসছে তোর পাশে বসে তারা হয়তো উত্তরটা জানেও না। তো তুই যদি প্রশ্নটা করিস, ইনফ্যাক্ট তার কাছে উত্তরটা চলে আসবে। যদি কেউ তোকে দেখে কোনোদিন হাসেও বা কিছু, কোনোদিন নিজের ওপর যে কনফিডেন্সটা আছে যে না আমি করতে পারবো, সেটা কোনোদিন হারাস না। আমি জানি না সুকান্তা আছে, সুকান্তা তো আমাদের মানে সিনিয়র, আমি জানি না সুকান্তা এরকম কোনোদিন কিছু ফেস করেছে কিনা। সুকান্তা एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर हुआ था, वो मैं बताता हूँ। पहले ये चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है कि संदीप देवनाथ का আমি তো অ্যাবসেন্ট মেরে দেবো, কিছু স্টেজে গিয়ে বলতে বলবো বলে। আচ্ছা আচ্ছা, फिर এশা মজুমদার का है कि আমি 5 বছর বয়সে ফার্স্ট স্টেজ अटेंड করেছিলাম। अच्छा, तो संदीप देवनाथ, ये ऐसा क्यों, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि स्टेज पे जाने से बेहतर है कि मैं एब्सेंट कर जाऊं? फियर। अच्छा, जो अभी अमर तो बता रहा था कि वो डरने की क्या बात है, कोई तुम्हें कुछ बोलने वाला तो नहीं है। इफ यू आर विलिंग टू गो, मतलब अगर तुम वहां जाकर बोल रहे हो तो वो अटमोस्ट कॉन्फिडेंस है कि तुम 10 लोगों को फेस करके बोल रहे हो, जो वहां तुमसे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं तुमसे कम कैपेबल है उस बात को करने के लिए। अच्छा, इससे पहले ईशा मजुमदार, जो मैं रिवर्स इंजीनियर का बात कर रहा था, करीब करीब इनकी उम्र का था मैं जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टेज क्या होता है, ऑडियंस क्या होता है, और अगर मुझे स्टेज का नहीं पता, ऑडियंस का नहीं पता, तो फिर स्टेज फियर आएगा ही नहीं। जिस चीज का मुझे पता ही नहीं, उसका कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में कैसे आएगा। तो ओवर ए पीरियड करते 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 ऐसा हुआ है कि मेरे को ऑडियंस और स्टेज से डर नहीं लगता, लेकिन वो नर्वसनेस होती है 10 सेकंड की। जब पहले 10 सेकंड में सबके साथ होता है, कोई कितना भी अच्छा स्पीकर हो, पहले 10 सेकंड वो नर्वस होता है। तो स्टेज पे जाके डरना बेहतर है स्टेज पे ना जाने से। हमेशा ये आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से हो सकता है, या फिर आप खुद के कंफर्ट जोन से, फिर जब हम बात कर रहे थे ना कि आप खुद के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर मैं संदीप अगर मैं आपकी तरह सोच रहा होता तो आज एक इवेंट में जहाँ पे बंगाली ज्यादा बोली जाती है, मैं हिंदी नहीं बोल पाता वहां पे, क्योंकि मुझे डर लगता था हिंदी की बंगाली कल्चर में हिंदी कैसे सरवाइव करेगी। बट सी मी, आई एम अ लाइव एग्जांपल कि एक बंगाली कल्चर के आसपास होके मैंने हिंदी में सारे इवेंट्स किए। गरम लागते थके, नर्वस, कपाल घाम, ईटीसी। अरे दिस इज द गुड साइन, वो अच्छी चीजें हैं। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो सबके साथ होती है, इट्स क्वाइट नेचुरल, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ट्राई करो, गिव अ ट्राई, मेक बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। सो मतलब मेरे साथ हुआ था, मतलब आप लोग तो नहीं होंगे शायद, मंजीर, अमत्तो और शायंतन, आप लोग कोई भी नहीं होंगे। जब मेरा फर्स्ट ईयर का ओरिएंटेशन हुआ था तो उस समय हमसे पूछा गया था, हमारे सीनियर्स ने पूछा था कि दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन फ्रेशर्स रेज योर हैंड्स। तो मुझे बहुत मन था करने का, बट मैं हाथ क्यों नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि वहां पे जितने लोग थे आइदर दे वर फ्रॉम बंगाली बैकग्राउंड और इंग्लिश बैकग्राउंड, और मेरा हिंदी बैकग्राउंड है। मुझे काफी डर लगता था, हेजिटेट कर रहा, मतलब वन ऑफ माय पार्ट वाज लाइक कि करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि शायद ये बंगाली में हो पाएगा मेरे से या नहीं हो पाएगा,
तो वो जो मेरा कंफर्ट जोन था वो मैं नहीं छोड़ पा रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने चीजों को फिर से अगेन वही चीज है कि चीजों को अडेप्ट करना शुरू किया। कुछ बंगाली फ्रेंड्स बनाए जिनसे मैंने कुछ बंगाली सीखी, उन्होंने मुझसे कुछ हिंदी सीखी। क्लास में भी ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप क्वेश्चन आता हो लेकिन आप आंसर नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको डर लगता है कि ये गलत ना हो जाए। मैं बोलता हूँ ना, गलती करो, हमें चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, चाहे चीजें गलत ही क्यों ना हो, एटलीस्ट वी हैव, मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए ना। अगर आपको लड़ाई करनी है तो आपको कम से कम तैयारी तो करनी होगी ना। मतलब अगर आप लड़ाई के लिए जा रहे हो और आप तैयारी ना करके, पार कॉन्फिडेंस से निकलने से बहुत डर लगता है। कैसा इसका, अच्छा ओवरकम कैसे इसको ओवरकम करो। एक एड आता है टीवी में माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है। ओके, सब आई गेस सबको पता होगा डर के आगे जीत है। तो उस डर को लड़ो, उस डर से लड़ना पड़ेगा। जो जो चीज से आपका कंफर्ट जोन क्या है, मतलब आपको क्या क्या चीज करने से डर लगता है, क्या लगता है कि ये करूंगा तो मुझे डर लगेगा। तो माउंटेन ड्यू नहीं, बी माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू पीने से कुछ नहीं होता। इट्स अ कोट। ওটা একটা অ্যানেকডট ছিল বাই দ্য ওয়ে। सो रानू, आपको किस चीज से डर लगता है? मतलब आपको क्या लगता है कि ये मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है? लोगों के बीच में जाने से। सोशलाइज अच्छा, सोशलाइज अच्छा। आपको सोशल होने से डर लगता है। तो अभी तो हम लोग करीब 20-30 लोग हैं और आप हमारे साथ बात कर रहे हो, तो आप तो सोशल हो गए, आपका कंफर्ट जोन टूट गया। इसको आप कंटिन्यू करो। अच्छा, स्टेज में स्पीच देने से, तो स्टेज में स्पीच देने से अच्छा है कि आप पहले शीशे के सामने कुछ बोलो, पहले खुद को फेस करो, फिर धीरे, मतलब कोशिश करते रहनी चाहिए। एक कदम तुम बढ़ाओगे तभी दूसरा कदम के लिए बढ़ोगे। मतलब रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। क्या? बाकियों से बात करने से, बाकियों से बात करने में। सोशलाइजिंग थिंग। अच्छा, लड़कियों से अच्छा बात करने में। सी, देखो, लड़का हो या लड़की हो, आपको बात करना पड़ेगा। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना, अगेन यू हैव टू बी माउंटेन ड्यू, अपना डर भगाना पड़ेगा। वो आपको बेहतर पता है कि आपका डर कैसे जाएगा। आप जब तक कुछ कोशिश नहीं करोगे आपका डर नहीं जाएगा। शायद तो तुम्हें भी कुछ ऐसा कोई डर है क्या? मतलब कि जैसे अभी श्याम बोल रहा है कि उन्हें स्टेज पे जाने से स्ट्रेस होता है। अरे मतलब वो तो एक तो नेचुरल दादा ওটাই है। বল। हाँ श्याम, वो नेचुरल फेनोमेना है। जस्ट एक बार उससे তো দাদা कोशिश करो ওটাই जाके। বললাম, ফার্স্ট অফ অল যে বললেন যে স্টেজ হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে আমারও স্টেজ ফিয়ার হতো প্রথমে। বাট আমি কি করলাম যে যখন একটা অপরচুনিটি আসলো যে হ্যাঁ ওই একটা কমফোর্ট জোন, একটা বাবল থেকে বাইরে বেরোনোর জন্য, আই জাস্ট টেক দ্য লিপ অফ ইট। আমি ফার্স্ট অফ অল একটা ওই ফার্স্ট স্টেপটা নিয়েছিলাম। তো দেখ যাদের এই শ্যাম বলছে যে মানে স্টেজে যেতে তোর ভয় লাগে, স্পিচ দিতে, তো ফার্স্ট অফ অল যখন দেখ কলেজে এসে একটা অপরচুনিটি পাবি, জাস্ট টেক দি অপরচুনিটি। একটা প্রথম স্টেপটা নিয়ে দেখ না। তোর শুভদীপ বলছে যে হ্যাঁ মেয়েদের সাথে কথা বলতে পারে, তো একটা হাই বল না, হাই বললে কেউ মেয়েরা কামড়ে দেবে না, সেটাই। আমারও ফার্স্ট অফ অল হতো, আমি তো বেসিক্যালি আমি পুরো বয়েজ স্কুল থেকে ভাই, তো আমারও একটু ইয়ে হতো যে হ্যাঁ আচ্ছা মেয়েদের সাথে হাই বললো ঠিক ভাবে না তো। তো বাট তারপরে কলেজে নিজে যে ক্লাসের সাথে ক্লাসমেটদের সাথে তাদের সাথে একটু সোশ্যালাইজ করার চেষ্টা করলাম, ট্রাই করলাম যে হ্যাঁ হাই আই এম শাহিন চৌধুরী, এভাবে এভাবে। তো অ্যাটলিস্ট টেক ফার্স্ট স্টেপ, টেক ইনিশিয়াল স্টেপস। তারপর আসি ওই ফার্স্ট স্টেপস থেকে দেন মানে আমি অ্যাটলিস্ট ওই ছোট ছোট স্টেপ নিতে নিতে এখন আমার বেসিক্যালি বলবো যে কোনো প্রবলেম হয় না। ফার্স্ট আমি যখন স্কুল লাইফে যখন দেখে এখন দেখি, আমি বললাম যে আমি আগে মেয়েদের সাথে কথা বলতে ভয় পেতাম, আমি এত সোশ্যালাইজ করতে ভয় পেতাম, আমি স্টেজে যেতে ভয় পেতাম, লাইক রিয়েলি। তো সেটাই বলে যে একটা ইনিশিয়াল কিছু কিছু স্টেপস নিয়ে দেখ, एंड इट विल टेक ड्रास्टिक चेंजेस इन यू। अच्छा भैया आपने भी ऐसा कुछ मतलब स्टेप लिया था क्या? तो एमनी हाँ, इसका एक ही है ना, मतलब स्टोरी बहुत है, कहानियां अगर हम जोड़ने जाएंगे तो बहुत सारी कहानियां जुड़ेंगी। तो सबका एक ही सॉल्यूशन है, जो हमने भी करा है या सबने करा है, चीजों को अडेप्ट करो और कोशिश करते रहो। कोशिश करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कोई भी, मैं फिर से कर रहा हूँ कि कोई भी जंग लड़ने के लिए जंग लड़ने का माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आया है ऐसे ही आप लोगों से, रैंडम क्वेश्चन, कि आप लोग सबको तो पॉकेट मनी मिलती होगी, और पॉकेट मनी अगर मंथ के या वीक के बीच में खत्म हो जाए तो आप क्या करते हो? मतलब आप घर से लेते हो या क्या करते हो अगर आपका मन पॉकेट मनी खत्म हो जाता है तो आप लोगों का?
কোথায় কোথায় বেসিক্যালি স্পেন্ড করি সেটাই। মানে পকেট মানি তো আমিও পেতাম, আমি বেসিক্যালি ওই মুভি সুভিসে ইয়ে করতাম, স্পেন্ড করতাম, বন্ধুদের সাথে ফিল্ম দেখতে যেতাম, বা কোনো সময় কোনো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে ফেললাম কিছু একটা, উইকলি অর মেবি ইন আ মান্থ। তোরা কি করে স্পেন্ড করছিস? अभी तक ऐसी सिचुएशन that good, you are very good in managing money and everything. पापा के वॉलेट जब तक है तब तक कोई टेंशन नहीं लेने। अच्छा 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 अच्छा, संदीप देवनाथ नहीं देते पॉकेट मनी, गाड़ी भाड़ा तारा जमिए रखते हुए। अच्छा 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 আচ্ছা, তো ঈশা যেটা বললি যে পাপা জব তক ফ্যামিলির ওই হাতটা আছে মানি প্ল্যান্টে, সে ততক্ষণ কিছু প্রবলেম হয় না, সেটা আমিও ভাবতাম যে হ্যাঁ যতক্ষণ বাবা আছে অ্যাটলিস্ট ওই টাকা দিয়ে হয়ে যাবে। বাট অ্যাটলিস্ট কলেজে উঠে না, সেটা তোর বিশালভাবে মানে প্রবলেম ফেস করতে হবে। কেন বলছি যে কলেজে উঠে ফার্স্ট যেটা বললাম যে একটা বন্ধু ছিল যে ওর এতভাবে স্পেন্ড করতো যে ওর টাকা যেভাবে শেষ হয়ে গেছিল। তো তোকে সেভাবে সেভিংটা তোকে শিখতে হবে। তুই যতক্ষণ সেভিং করতে শিখবি না ততক্ষণ তুই বুঝবি না যে মানি ম্যাটার্স অর নট। অ্যান্ড অনেকজনকে দেখেছি যে হ্যাঁ যে মানে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন একটু বাজে ছিল, হ্যাঁ তো মানে ওরা তেমন পকেট মানিও পেতো না কলেজে এসে, মানে তো খুবই ইয়ে করে স্পেন্ড করতো। বাট ওরা কি করলো, দে স্টার্ট টু ডু সামথিং এলস, দে স্টার্ট টু আর্ন মানি। সেটা কি করে? কলেজে উঠে আই থিঙ্ক সো দের আর মেনি ওয়েজ টু আর্ন মানি, লাইক তুই পার্ট টাইম করতে পারিস, বা তুই ইন্টার্নশিপস করতে পারিস, বা অথবা তুই হচ্ছে টিউশনস পড়াতে পারিস। টিউশনস আর মাচ মোর ইজিয়ার ওয়ে, কারণ অনেক বন্ধুকে দেখেছি মানে লাইক অনেকটাই আর্ন করতো। বাট ওটাই বললাম যে তোকে সেভিংসটা তোকে মানে সেভিংসটা তোকে শিখতে হবে যে কি করে আচ্ছা মা বাবার আশীর্বাদ ওঠে। সেটাই বলছি যে হ্যাঁ আমারও তাই মনে হতো। বাট যতক্ষণ না তুই আর্ন করাটা যতক্ষণ না শিখবি না ততক্ষণ তুই বুঝবি না যে হ্যাঁ টাকাটা কতটা ম্যাটার করে, যে পরের দিকে এটা সত্যিকার বিশাল প্রবলেম হতো। অ্যান্ড দেন আমি সত্যিকার বলছি অ্যাটলিস্ট যদি তোর মনে হয় যে হ্যাঁ আমি সেভ করতে পারছি না, যখন মনে হচ্ছে হ্যাঁ মানে আমার টাকা জাস্ট স্পেন্ড হয়ে যাচ্ছে, you can definitely start discovering some other things like টিউশন তুই করতে পারিস। অনেকজনকে দেখেছি আমার বন্ধুরা বলছি যে দে মানে ওরা আর্ন করতো ফটোগ্রাফি লাইক ফটো দিয়ে। সেটা আমাকে একটা জিনিসও বলেছে, যেটা শেয়ার করি যে দেখ ভাই पैसे हवा में उड़ रहे हैं, just you have to know how to catch it, you have to get the opportunity। সেটাই যে ফটোগ্রাফি, সেটাই বলছি। অনেকজন আছে যে এরকম অনেক বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন ইয়েতে তোকে রাখতে চাইছে, বাট তোকে সেই অপরচুনিটি খুঁজতে হবে, তোকে সেই অপশনটা তোকে খুঁজতে হবে সেই মানি আর্ন করার জন্য। আচ্ছা দাদা তোমারও হাউ ডু ইউ লাইক সেই মানি সেভিংটা ইয়ে করতে, মানি ম্যানেজমেন্ট করতে কলেজে এসে? তবে সিরিয়াসলি বলতে গেলে আমার পকেট মানি আমি জমিয়ে খরচা করি না, বাট তোমার এখানে বলবে তাই বললাম ওই কথাটা। अच्छा नहीं सी मस्ती मजाक सब सही चीजें हैं, बट जब हम बड़े होने लगते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं, तो हमारे पास एक महीने के स्टार्ट में ही कुछ अमाउंट घर से क्रेडिट हो जाता है। तो हम चाहे तो मम्मी पापा है, हम जब भी चाहे उनसे मांग सकते हैं और वो कभी ना नहीं बोलेंगे, नो मैटर व्हाट उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़े। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम समझें चीजों को, कि मतलब मम्मी पापा ने तो मुझे पहले से पैसा भेज दिया है, अभी अगर फिर से मैं मांगूंगा तो हो सकता है कि कुछ और घर पे कुछ और चीजें ना हो पाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। तो ये मेच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, खुद के साथ होने लगता है जब हम कॉलेज में होते हैं, या फिर छोटे में भी। जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों ने बोला कि हम पैसे बचाते हैं, जो मेच्योरिटी उन्होंने गेन की है, तो फिर वो ना मांगने में अच्छा नहीं लगता। तो या तो फिर हम अपने उसी में कटौती करना लगते हैं कि 100 रुपए मिले हैं तो अच्छा ठीक है इसको ऐसे 10-10 रुपए करके 10 दिन चलाएंगे, या फिर वी ट्राई टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव थिंग्स। जैसे मेरे साथ हुआ, तो सेकंड ईयर तक होते होते मुझे लगता था कि मेरे पास 1-2 हजार रुपए और होते तो मैं कुछ अलग कर लेता, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करते रहता हूँ, तो ये कर लेता या वो कर लेता। और घर पे बोलना ऑब्वियसली हर चीज के लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब हम बड़े हो रहे हैं, चीजों को समझना, हम समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो चीजें हम समझ पा रहे हैं। तो मैंने ना ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया जहां से मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे। तो अब क्या उससे क्या हुआ कि मुझे एक फोन खरीदना था,
10,000 घर से मिले कि ठीक है ओके यू बाई अ फोन, 10,000 मेरे को मिला, मैंने अपने ट्यूशन वाले 2,000 मिला दिए, 12,000 का एक अच्छे स्पेसिफिकेशन का फोन आ गया, चाहे वो पबजी खेलने के लिए क्यों ना हो, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मैंने अपने पैसे का कुछ खरीदा है, मैंने पैसा मैनेज करना सीख लिया है। तो ये चीज अडेप्टेबिलिटी है, अगेन फिर ये अडेप्टेबिलिटी है। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। और क्या है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, और कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मम्मी पापा है या कोई सपोर्ट है, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जब हम खुद के सपोर्ट पे जिंदा होंगे, तब मैच्योर होना और कंफर्ट जोन तोड़ना बहुत जरूरी हो जाएगा, मेरे लिए भी और आप सब के लिए। तो आप लोगों को कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने कुछ कंफर्ट जोन छोड़ा हो, या फिर कुछ ऐसा किया हो कि पॉकेट मनी अर्न कर, या कुछ भी ऐसा हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस हो, आप प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मोनोटोनस और हम ही सिर्फ बोले जा रहे हैं। आप लोग भी बोलिए, माइक खोलकर भी आप बोल सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, और यू आर ओके विद इट। चैट মাইন্ডে बॉक्स যা में भी हम করছে তোমারই চ্যাট বক্স তো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ Hello? শ্যাম हाँ হ্যাঁ श्याम, শ্যাম हाँ हाँ, पॉकेट मनी का जो प्रॉब्लम होता है सबको फेस करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या एचएस के बाद नौकरी करना जरूरी है? नहीं, पार्ट टाइम कर सकते हो, पैसा मैनेजमेंट कर सकते हो। मतलब जो ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तुम देख लो कि क्या फिजूल का खर्च है, मतलब ये करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे तुम मैनेज कर अच्छा। सकते हो। क्योंकि देखो, वो तुम्हें पता है ना कि कहाँ पैसा खर्चा करना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी लाइफ है, तो तुमको पता है कि मुझे ये पेन खरीदना चाहिए या मुझे ये फोन खरीदना चाहिए, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन वो इंपॉर्टेंस को समझने लगोगे, उस दिन आप पैसा बचाने लगोगे, या फिर आप पार्ट टाइम करके उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो दोनों तो जरूरी है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं पार्ट टाइम कर लेता हूँ कुछ। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस रास्ते पे जाओगे, आप पैसे बचाओगे, सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप कुछ अर्न करके पार्ट टाइम करके सेल्फ डिपेंडेंट होके रहना सीखोगे। क्योंकि अल्टीमेटली सेल्फ डिपेंडेंट आपको ही होना है हर सिचुएशन में। ओह अच्छा अच्छा, समझ और किसी का कोई क्वेश्चन, और किसी को कुछ स्टोरी शेयर करनी हो अपनी? চ্যাট বক্সে বলতে পারিস বা মাইকটা আনমিউট করে বলতে পারিস। हेलो, प्लीज आप लोगों का कुछ मैसेज है या कुछ आपको बोलना हो, कुछ पूछना हो, तो हम जरूर बोलेंगे। क्योंकि हम लोग लगातार बोले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप भी कुछ बोलो, हम ये इंटरैक्टिव सेशन हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से। वी आर वेरी ईगर टू टॉक टू यू, प्लीज। मैंने जो बोल रहा था फिर से एक बार बोलना, बोलो ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। ये कौन सा जो बात? टॉपिक चल रहा था, ये पॉकेट मनी का अच्छा नहीं, पॉकेट मनी ये था कि अगर आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, अगर आपकी पॉकेट मनी इन बिटवीन समथिंग खत्म हो जा रही है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप घर से ले लोगे, या फिर आप खुद कुछ करके अर्न कर लोगे, या फिर आपका जो बेकार खर्चा हो रहा है वो आपको पता है कि आप क्या खर्च गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, तो उसको डिपेंडेंट बनना होगा, चीजों को एनालाइज करना होगा कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपको क्या क्या करना चाहिए। यही बात हो रहा है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा और चीजों को एनालाइज करना शुरू करना है, को क्या चीज करना। अब वो आप कैसे मैनेज करोगे? आप पार्ट टाइम करके, ट्यूशन पढ़ा के, गिटार बजा के, गाना गा के, कुछ भी करके कर सकते हो, या फिर आप बेफिजूल के खर्चों को खत्म करके कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों में से किसको किसको गिटार विटार बजाना या गाना वाना गाना बहुत अच्छा लगता है? সেটাই मुझे অন্য गाना কোনো আচ্ছা ভালো ভালো বা अरे কারো किसी को कुछ ফটোগ্রাফি बोलो। করা ভালো हाँ, লাগে। हेलो, हाँ प्लीज, कोई कुछ बोल रहा था। अच्छा, मेरे को अच्छा, संदीप देवनाथ मेरे को, श्याम शाह मेरे को सॉन्ग पसंद है। शायद तुमको क्या पसंद है? अच्छा, चित्रलेखा शाह আমার গান করতে খুব ভালো লাগে। আচ্ছা দ্যাটস গুড, ভেরি গুড। शायद तुमको क्या पसंद है अपार्ट फ्रॉम करिकुलर? तुमको क्या पसंद है करना, अपार्ट या फ्रॉम फिर करिकुलर? তো দাদা আমার বেসিক্যালি আইডিয়া তো ছিল পুরো ইঞ্জিনিয়ারিং করার, বাট আমার একটা আলাদা একটা ছোটখাটো একটা ইয়ে আছে যে ইচ্ছে আছে, একটা ফিল্মস এর প্রতি আমার একটা মানে খুব একটা বেশি ইন্টারেস্ট আছে। ফিল্ম মেকিংটা আমার একটু মানে কি বলবো, একটু
মানে ইচ্ছে ছিল, একটা প্যাশন ছিল, বাট সেটা ফার্স্ট অফ অল সেটা হতে পারেনি। মানে ফার্স্ট অফ অল তেমন মাথায় আসেনি যে হ্যাঁ মানে কিভাবে যাবো কি না যাবো। ইঞ্জিনিয়ারিংটা হ্যাঁ এখন প্যাশন আছে, বাট এখনো ফিল্ম মেকিং আমি একটু মানে দেখি, কোনো সময় নোলানের বা স্কোরসেসির বিভিন্ন বিভিন্ন টিচিংস গুলো লিওনিস গুলো দেখি। অ্যান্ড আমি সেটাই দাদা তোমাকেও জিজ্ঞেস করি যে মানে হোয়াট ওয়াজ ইউর প্যাশন। অ্যান্ড এখন তো ইঞ্জিনিয়ারিং করছো, বাট মানে কোনো কিছু ছিল যে পয়েন্ট অফ ছিল যে হ্যাঁ মানে এটা করলে হয়তো লাইক কোনো একটা ইন্টারেস্ট ছিল, তুমি ইন্টারেস্টেড ছিলে, বাট সেটা এখন হয়ে ওঠে না। अच्छा नहीं देखो, पहले चीज तो शायद की, ये शायद तुमने बोला ना कि ये चीज शायद कोई ऐसा चीज था, तो मैंने किसी चीज को था पे नहीं छोड़ा। मुझे लिखना बहुत पसंद है और फ्रॉम द प्राइमरी से मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखना स्टार्ट करा था, मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो मैंने अपनी पहली पोइट्री जो आप लोगों को, आई गेस आप लोगों को भी कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा पसंद होगा ওদের কোনো একটা उस टॉपिक में, अपार्ट फ्रॉम जो करिकुलम। मैंने लाइफ टाइम प्रॉब्लम आउट ऑफ होम। अच्छा अच्छा, इसका आंसर सॉरी श्याम, वी फॉरवर्ड दैट। देखो अच्छा अच्छा, श्याम का क्वेश्चन आया है, फिर सुमी मंडल का क्वेश्चन आया है कि जैसे कि मूवी में दिखाते हैं कि कॉलेज में रैगिंग होता है, ऐसा क्या रियल में होता है क्या? अच्छा पहले श्याम का क्वेश्चन का आंसर करते हैं, फिर सुमी विल आंसर योर क्वेश्चन कि लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम हाँ जरूर होते हैं। क्योंकि देखो सबसे बेसिक फंडा क्या होता है कि आप जब घर पे होते हो तो मम्मी के या पापा का हाथ का खाना खा रहे होते हो, जब आप बाहर आते हो तो पूरा चेंज हो जाता है। आप कहीं बाहर का खाना खा रहे होते हो तो फूड का टेस्ट बदलता है, लाइफस्टाइल बदलती है कि हाँ एक फ्रीडम मिलता है, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। यू आर फ्री टू प्ले पबजी ऑल ओवर नाइट, बट आपको डिसाइड करना है कि कल क्लास जाना है कि नहीं जाना है। लीनियंसी मिलती है, फॉर श्योर लीनियंसी मिलती है, मतलब आपको हर चीज मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस चीज को खुद ही समझना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में बहुत सारी खाना खाने का प्रॉब्लम होगा, ड्रेस धोना है, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, नहाना है, कॉलेज जाना है, ये सारी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मम्मी पापा के होने की वजह से नहीं दिखती, वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप घर पे होते हो तो शायद कपड़े खुद धुल जाते हैं, प्लेटें और बर्तन सारे खुद धुल के आ जाते हैं सामने। अब जब सुबह उठते हो तो खाना बना बनाया होता है, लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे तो ये चीजें बदलेंगी। कपड़े शायद आपको खुद धोने पड़ेंगे, खाना बनाने के खुद सुबह उठ के बनाना होगा, भाजी लानी होगी, ये चीजें बदलती हैं। आप कभी भी कुछ भी चीज बदलोगे तो चीजें बदलेंगी, लेकिन उसको अडेप्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से लाइफ करना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रोइंग अप, आप जब भी बड़े होना शुरू करोगे तो चीजें बदलेंगी, आप उसको कैसे अडेप्ट करते हो और किस तरह लेके जाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ प्रॉब्लम होता है, उसको सॉर्ट करने के लिए आपको खुद ही खड़ा होना होगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग अप और बीइंग मैच्योर। तो श्याम साहब आई गेस यू गॉट योर आंसर। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ तुम चीजों को जितना जल्दी एनालाइज करना सीख जाओ, तुम अडेप्ट करना जितना जल्दी सीख जाओगे। जैसे मुझे 2 महीने लगे थे ये समझने में कि रेस्टोरेंट ही खाना खाने का दूसरा ऑप्शन नहीं होता, हमें कुछ और वे आउट खोजना पड़ेगा। हाँ जहाँ पर शायद मैं 6 बजे उठता हूँ वहाँ पर 5 बजे उठना पड़े। हाँ हो सकता है। हाँ यही बात है। क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता। আচ্ছা আমি সরি, এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট বললো যে শায়দ মুঝে 6 बजे उठना हो और मैं 5 बजे उठे। তুই সকাল 6টায় উঠে ভাই? he is in school, he can। তোমার স্কুল হ্যাঁ কটায় স্কুল? তো কটায় স্কুল শ্যাম? हाँ अब तो स्कूल नहीं है लॉकडाउन में। नहीं ऐसे स्कूल स्कूल कখন? 10 बजे। 10টার সময় তো স্কুল। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে 6টার সময় উঠে সেটা নিজের থেকে উঠিস না মা হচ্ছে? আমি যখন শুয়ে থাকতাম আমার মা পেছন থেকে প্রথমবার বলতো ওঠ, তারপরে বলবো ওঠ, তারপরে একটা লাঠি নিয়ে মারতো, আমি এমনি উঠে যেতাম। তো তোরা এরকম নিজে নিজে উঠিস না ওঠায়? नहीं मेरे अलार्म होता है और 7 बजे ट्यूशन होता है, तो 6 बजने के थोड़ा पहले उठकर मॉर्निंग वॉक में जाना होता है। आकर फिर 7 बजे ट्यूशन, उसके बाद आकर स्कूल, आकर फिर से ट्यूशन, आकर फिर से ट्यूशन, फिर सोना। আচ্ছা শ্যাম, শ্যাম এই জায়গাটাই হচ্ছে বুঝতে হবে, বুঝলি? এ দেখ তুই কি সুন্দর
हाँ না না দেখ দেখ, তুই কি সুন্দর নিজে নিজে বুঝলি যে আমার এখন স্কুল, আমি হচ্ছে এই সময়টা উঠবো, এই সময়টা উঠে মর্নিং ওয়াক করে, মর্নিং ওয়াক করে এইসব কাজ করে আমি স্কুল যেতে পারবো। তুই বুঝতে শিখেছিস কি না? হ্যাঁ কি না? তুই এই জিনিসটা বুঝতে পারছিস? তুই हाँ বুঝতে एक পারছিস रूटीन मेंटेन कर कर चलना पड़ता है। এক্স্যাক্টলি। যে এখনই কেউ একজন কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করলো না কত টাইম লাগবে, এই জায়গাটা বুঝতে হবে যে টাইম ম্যাটার না, তুই কত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বুঝতে শিখেছিস যে নিজের দায়িত্বটা আমাকে নিজেই নিতে হবে। আজ তো যদি একটু অ্যালার্মটা মিস হয়ে যায়, আজ অ্যালার্মটা মিস হয়ে গেল, তখন কি হয় বলতো? মা চলে আসে অ্যালার্ম হয়ে, কিন্তু মজার গল্প কি বলতো, সেখানে মা থাকবে না। তো ওই যে ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে এর যে আমি ভুল করি বা দেরি করে উঠি তার দায়িত্ব আমার, আমি যদি তাড়াতাড়ি উঠি তার ক্রেডিটও আমার। যে বলে না যে বুঝতে কতক্ষণ লাগবে, বোঝার কোনো সময় নেই, বুঝলি তো? যত তাড়াতাড়ি অ্যাডাপ্ট করতে, অ্যাডাপ্টেবিলিটি যত তাড়াতাড়ি করতে এমনি চলে আসবে। আমার এই পয়েন্টটা খুব ভালো লাগলো। শান্ত, তুই চ্যাট গুলো দেখ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो अच्छा सुमी একটা क्वेश्चन করেছো जैसे कि मूवी में दिखाते हैं कि कॉलेज में रैगिंग होता है, ऐसा कि रियल में होता है क्या? তো আমি সেটাই আগে আগে শুরু করেছিলাম আই থিঙ্ক সো। তো আমি একটা নিজেরই এক্সপেরিয়েন্স বলছি। আমার মাই ফার্স্ট ডে এট লাইক কলেজ, মেসে প্রথম দিন প্রথম রাত, তখন মা বাবা চলে গেছে। একটা প্রথম দিন আমি একটা ইয়েতে বসে আছি পুরো মেসে, আমি আর আমার রুমমেট, জুনিয়র, বাকি সবাই হচ্ছে সিনিয়র্স। তো কি হলো, যখন রাত হলো, সবাই একটা একটা ডোরে একটা ঠকঠক একটা নক দেখি, যখন খুললাম সব সিনিয়ররা চলে আসলো। দেন তারপর চল ইন্ট্রোডাকশন দে। তো ইন্ট্রোডাকশন আমি দিলাম। হ্যাঁ তুই যেটা জানিস যে হ্যাঁ ওরা বলে যে হ্যাঁ ইন্ট্রোডাকশনটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজে দিতে হয়, হয় বাংলা দিতে হয়, না হয় ইংলিশ বা হিন্দি, এন্ড একটা ইয়ে রাখতে হয়, একটা কোনো একটা স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ রাখতে হয়। তো সেটাতে অনেক ভুলভাল হয়েছিল। একটা সিনিয়র ছিল স্পেসিফিক্যালি আমাকে অনেক একটু রগড় দিয়েছিল। বাট একটা জিনিস বলি যে ওই যে দাঁড়াটার সাথে যে আমাকে বেশি করে মানে বেশি রগড় দিয়েছিল না, তার সাথে আমার একটা আলাদা রকম একটা বন্ডিং তৈরি হয়ে গেছিল। অ্যান্ড যখন দাদাটা পাস আউট করছিল ওই কলেজ থেকে, তখন লাইক হি ওয়াজ লাইক এ ব্রাদার টু মি। ওর সাথে আমি রুম শেয়ার করেছিলাম, সবকিছু করেছিলাম। তো প্রথম দিকে তোর মনে হবে যে হ্যাঁ সিনিয়রদের র্যাগিং, ফার্স্ট অফ অল কলেজে উঠে কলেজের প্রেমিসেস তেমন র্যাগিং আমি দেখিনি, বাট তেমন হার্ডলি তোর ইন্ট্রো হবে বেসিক্যালি। ইন্ট্রো মানে হ্যাঁ নাম বলো, কোথা থেকে এসছো, বাস এটাই। তাছাড়া আমি তেমন তেমন কিছু হবে না। আচ্ছা দাদা, তোমার কি কোনো একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে, মানে মেসিতে তুমি এসেছিলে, आई थिंक सो मेसे तक थे ना फर्स्ट ईयर। देखो 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 चीज क्या होता है ना कि जो मूवीज है ना वो बड़ा एग्जैजरेटेड चीजें हैं, ठीक है। वहां पे रियल लाइफ और रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट में बड़ा डिफरेंस है। रैगिंग बहुत डिफरेंट चीज है, एक नेगेटिव वर्ड है। रैगिंग को अगर देखो तो वो बहुत एक नेगेटिव वर्ड है जो हमने और आपने कभी फेस नहीं करा है। वो गलत चीज है। अगर आप बोलोगे कि किसी चीज को लेकर बोलोगे कि हर जगह होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो होता है एक्चुअली जो होता है वो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहला कि हम जब स्कूल में होते हैं तो हम सीनियर मोस्ट होते हैं, और जब हम कॉलेज आते हैं उसी टाइम हम जूनियर मोस्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने ना एक छोटा सा एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है कि अरे मेरे को तो सब आता है, क्योंकि इट्स अ टीन एज। वहां पे आप ग्रेजुअली जब बड़े हो रहे हो तो अंदर एक चीजें आती हैं कि मुझे तो सब पता है। हमारे साथ भी होता था। और स्कूल में जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ आपका बॉन्डिंग, और कॉलेज में आने के बाद आपके सीनियर के साथ बॉन्डिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ना थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है डिग्निटी। क्योंकि जब आप कॉलेज में आते हो तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के बहुत नजदीक पहुंचते हो। तो वहां पे अगर आपसे कोई एक दिन भी बड़ा है या सीनियर है एक दिन भी एजुकेशन में, तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती ही है और देना ही चाहिए। जैसे मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, वी हैड अ गुड चैट, और उसके बाद मैं उनको इज्जत देता हूँ, भैया बोलता हूँ। जैसे सैंतन अमर तो और भी लोग हैं जो मुझे भैया बोलते हैं, मैं उनको उनके नाम से बुलाता हूँ। तो हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं है। सो ये हो सकता है, इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, कभी किसी के साथ हो ही सकता है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, बट जनरली ये नहीं होता। इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जो एक सीनियर जूनियर के बीच में होता है, जो हम लोग एक दूसरे के साथ मेंटेन करते हैं कि आपका नाम क्या है, और ऐसे इंट्रोडक्शन जैसा। जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना एक्सेजरेटेड कुछ नहीं होता। और किसी का कुछ अगर ऐसा कुछ बातें हो तो प्लीज कुछ क्वेश्चंस, आप वी आर ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस।
কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে থ্রু আউট দ্য সেশন ফিল ফ্রি টু আস্ক। তোরা মাইকে বলতে পারিস বা চ্যাট বক্স ইজ ওপেন ফর ইউ গাইস। प्लीज पर रैगिंग में प्रॉब्लम तो होता ही है। हेलो, फिर से रिपीट करना। हेलो, रैगिंग में प्रॉब्लम तो होता ही है ना। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा श्याम, क्लियर नहीं आ पा रहा आवाज। मैं बोल रहा हूँ रैगिंग में प्रॉब्लम तो होता ही है। नहीं, मैंने तुमको बताया रैगिंग एक बहुत नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। वो एक बहुत नेगेटिव वर्ड है जो कहीं हो सकता है, ठीक है, कहीं हो सकता है। वो एक गलत चीज है। ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में रैगिंग होती है, ऐसा कहीं नहीं है कि हर कोई रैगिंग करता है, ऐसा कहीं नहीं है। वो एक गलत चीज है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो मे बी आपको फेस करना पड़ सकता है, मे बी आपको फेस नहीं करना पड़ सकता है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसका कॉलेज से कोई रिलेशन नहीं है या फिर किसी पर्सन से कोई रिलेशन नहीं है। और बस ये थोड़ा सा एटीट्यूड डिफरेंस है, बस। और क्या, स्कूल के सर और कॉलेज के सर में डिफरेंस होता है। अच्छा, शुभदीप, डिफरेंस थोड़ा बहुत बोल सकते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन टीचर होते हैं जिनसे हम हमेशा कुछ सीखते हैं, तो सिखाने वाला हमेशा हमसे बड़ा होगा और उसका माइंडसेट सिर्फ एक ही होगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाऊं, ठीक है। तो शायद डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत। हाँ, मैं वैसा नहीं बोला। मैंने बोला कि स्कूल के टीचर अगर कोई कुछ गलत करते हैं तो डांटते हैं, मारते हैं, तो कॉलेज में कि ऐसा कुछ होता है? कॉलेज में होता है। कुछ टीचर्स आपको डांटेंगे, समझाएंगे कि ऐसा मत करो, लेकिन देखो, हम जिस स्टेज पे है ना, उस स्टेज पे हमें मतलब खुद समझ में आना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था ना कि हमें अब जब हम कॉलेज चले जाते हैं तो हर गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेना होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, वो खुद समझना होता है। मतलब कोई हमें पकड़ के सिखाने वाला नहीं होता कि आप ऐसा करो ही। अगर कोई बता रहा है वो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी बता रहा है तो वो किसी की गलती नहीं, वो आपकी है कि आप अपनी गलतियां नहीं समझ पा रहे हो। तो आप अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना कॉलेज में ही स्टार्ट कर सकते, स्कूल से ही स्टार्ट कर रहे हो। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा, अपने पॉजिटिव चीजों को समझना पड़ेगा। शायद कोई ना आए आपको बताने कि ये गलत है, ये सही है, वो खुद आप होगे जो खुद को बताओगे। हेलो, सो शुभदीप, क्लियर हुआ बात? हाँ, क्लियर। और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? अच्छा, तो आई गेस अच्छा, तो मेरा जो पैशन पे बात कर रहे थे शांतन, हम लोग पैशन के बाद ये क्वेश्चन आंसर हम, तो मेरा पैशन था लिखना, ठीक है। तो मैं बचपन से लिख रहा हूँ, क्लास 1 2 3 4 5 से मैं लिखता आ रहा हूँ। तो लिखते आप लोगों का भी कुछ पैशन होगा। जैसे तुमने बोला कि शायद मुझे फिल्म मेकिंग अच्छी लगती, फिल्म मेकिंग का तुमने कुछ बात करा, तुमने शायद पे छोड़ा। तो चीजों में सबसे बोलूंगा कि चीजों को कभी शायद पे ना छोड़े, क्योंकि जब आप शायद वर्ड यूज करते हो ना, जोदी जैसे बंगाली में बोलते हैं, अगर आप यूज करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद को रिग्रेट कर रहे हो खुद से। और जो चीज आपके पैशन है, जिससे आपको खुशी मिलती है, वो शायद कैसे हो सकती है? आप उसको कैसे नहीं कर सकते हो? ये 24 घंटे में आप अपनी खुशी का एक भी चीज नहीं कर रहे हो, तो फिर आप रोबोट हो गए ना मेरे भाई। तो मेरे साथ भी हुआ बहुत सारी चीजें कि मेरे को बहुत बार फील होता था कि नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरे से भी बहुत अच्छे लोग हैं जो लिखते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो बोलते हैं, बट मैंने लिखना नहीं छोड़ा। क्योंकि मैंने जो पहली पोइट्री लिखी थी वो कंट्री पे थी कि माँ भारती तुझे सलाम है से अभी तक मैंने जो कविता लिखी है, फर्स्ट ईयर में आके मेरी 3 से 4 बुक्स पब्लिश हुई हैं। तो ये 14 साल का जो गैप था, उसमें मैंने कुछ अचीव नहीं करा। मैंने सिर्फ खुद को पुश करा है कि लिखते हैं और लिख के अचीव करते हैं और लिख के अचीव करते हैं। तो लिखते अगर मैं वहां रुक जाता तो मैं फर्स्ट ईयर में बुक पब्लिश नहीं कर पाता। अगर मैं वहां शायद बोल देता, फर्स्ट ईयर में बोलता कि शायद मुझे लिखना चाहिए था, तो मैं ये नहीं बोल पाता कि ये मेरी बुक है, मैं ये बोल पाता शायद मेरे को लिखना चाहिए था। तो ये शायद वाला वर्ड छोड़ के अगर हम अपना लाइफ का जो सबसे पैशन चीज है, मतलब बिगर पिक्चर क्या है हमारे लाइफ का, अल्टीमेट गोल क्या होता है, आप लोगों के हिसाब से अपने लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होता है? like what makes you happy, এমন কোন জিনিসটা করে তোর মানে তুই হ্যাপি ফিল করিস? ইটস লাইক বিং উইথ সামওয়ান অর
ডুইং সামথিং, এটা কারোর ফটোগ্রাফি হয় বা কারোর পেন্টিং হয়, আমার ক্ষেত্রে যখন একবার ফিল্মস একটা ভালো লাগতো আমার সেরকম। এনিথিং দ্যাট লাইক মেক্স ইউ হ্যাপি, লাইক ইন্টারেস্ট ইউ, ইউ আর ইন্টারেস্টেড, তোর প্যাশন একটা খুব একটা, সেটা তুই করতে চাস। और लोगों के मुंह में स्माइल लेना ही मेरा पैशन है, मगर मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ। আচ্ছা, লাইক গ্রেট গ্রেট। আচ্ছা, যেটা খুশি সেটা তো বাড়ি থেকে করতে দেবে না। স্পোর্টস एंड म्यूजिक আমার पैशन। सी स्पोर्ट्स और म्यूजिक तुम पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हो, और इसका आंसर के लिए वी हैव अ सरप्राइज सेगमेंट फॉर यू पीपल, सो स्टे ट्यून्ड। अगर किसी को लगता है कि हम अपना पैशन अचीव नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई करते करते या नहीं करने मिलेगा, तो वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू, फॉर दिस ओनली वी हैव अ ग्रेट सरप्राइज फॉर यू। और मेरे साथ भी होता था कि लगता था कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब होता है ना लिखते लिखते बीच में, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि सबको अपना लाइफ में खुद की तरह बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी की तरह बन नहीं सकते, आप किसी से एडमायर कर सकते हो, किसी को किसी से किसी को कोचिंग ले सकते हो, बट खेलना आपको खुद को पड़ेगा। तो जब मेरे को ऐसा फील हुआ था ना, तो मैंने कुछ लिखा था, और होपफुली कि जब भी आप ऐसा फील करोगे तो आप भी कुछ ऐसा ही सोचोगे, और अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो प्लीज हमेशा याद रखिएगा। और तो कुछ ऐसा था कि जिंदगी जब भी मुश्किल लगने लगे, जिंदगी जब भी मुश्किल लगने लगे, एक तोहफा देना खुद को और मुस्कुराना कि लड़ना आ गया तुम्हें। अरे तो फिर जब जो चीज हॉन्ट करती है खुद को ना, तो खुद को मैंने पूछा था, जा रहे हो रुक जाओ, अरे जा रहे हो रुक जाओ, अभी बर्बाद नहीं हुआ हूं मैं। बर्बाद मतलब खुद को पैशन की तरफ एक्सप्लॉइट करने का मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स है कि जा रहे हो रुक जाओ, अभी बर्बाद नहीं हुआ हूं मैं। अरे रुक कर देख तो सही इस समंदर के पार, और समंदर है वो शायद तेरे हो, और तुम बैठ के कह सको कि हाँ इस दुनिया की सारी नदियां मुझ में मिलती हैं। बहुत अच्छा कि आपने लिखा है क्या? की सारी नदियां मुझ में मिलती हैं, और मैं इस पानी का खारापन भी हूँ, और इस पानी से नमक भी मेरा ही है। तो आओ एक कदम और बढ़ाते हैं, और इस जंग को लड़ते जाते हैं, शायद अंत में जीत हमारी हो। श्याम साहब, हायर स्टडीज में स्टडी एंड स्पोर्ट्स इक्वल रह सकते हैं, या फिर स्टडी में ज्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ता है? सी, तुमको देखना पड़ेगा कि तुमको किस में ज्यादा एफर्ट्स देना पड़ा। स्पोर्ट्स ऑब्वियसली एक फिजिकल टफनेस वाला चीज है, तो उसमें थकान होती है, बट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्टडीज। आपको कंटिन्यूअसली मेंटेन करना हो। अगेन यू हैव टू बी अडेप्टेबल, यू हैव टू अडेप्ट, यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, और अडेप्ट करना पड़ेगा हर चीज को करने का अपना एक तरीका होता है। सो ऑन दैट नोट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो एंड आस्क टू अस, अदरवाइज भैया 7:30 से मेरा ऑनलाइन क्लास है, पर अभी आपकी बातें भी सुनना चाहती हूँ। थैंक यू, वी विल नॉट से यू दैट you should attend your classes, you should attend your classes, and we have a segment, if you want to be there please be there. So Amatto, over to you. আচ্ছা হ্যালো, আবার হাই। আচ্ছা তোরা সবাই মানে কেমন লাগলো ব্যাপারটা, কেমন লাগলো? কত কিছু তো শুনলি, কত নতুনত্ব জিনিস শুনলি। আচ্ছা এইবার তো লাস্টে এসেছি, এবার তো কলার আওয়াজগুলো একটু শুনি। অসাম, দারুন অসাম। এবার একটু মাইকটা অন করে একটু শুনি কেমন লাগলো। এতক্ষণ তো বললো, আয় না কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে। সত্যি কতদিন এটা ভালো লাগে, খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ, খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর ওখানে বলছিল না যে সন্দীপ বলছিল যে বোধহয় স্পোর্টস আর ওটা শ্যাম বলছিল হায়ার স্টাডিতে স্পোর্টস ইকুয়াল হতে পারে কিনা, বা আমি যা চাই সেটা আমি করতে পারি কিনা। এটাই তো শ্যাম, এটাই তো মোটিভ। মানে আমি অনেক কিছু চাই যেটা আমি করতে পারছি না, শুধু পড়াশোনা করছি, এরকমই তো তোর মোটিভ। আশা করি এটার কোশ্চেনটা मतलब अल्टीमेटली आपको वो करना है जो आपको खुश करता है, चाहे वो हायर स्टडीज हो, जॉब हो, या कुछ भी हो। व्हाट मेक्स यू हैप्पी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। जो हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि आप वही करो जो आपको खुश करता है। आप खुद को पहचानो, जस्ट बी अ स्टार ऑफ योर ओन स्काई। ठीक है? सो अमतो, if you want to call out the special section, so the special section, if you want to reveal right now, you can please go ahead. नहीं वो तो देखिए भैया, देखिए गिफ्ट जो देगा
गिफ्ट जो देगा सबको प्रॉमिस किया है भैया ने, तो भैया गिफ्ट डिस्क्लोज करेंगे सबके सामने। लेकिन उसके पहले मैं बस एक क्वेश्चन इन लोग को थ्रो करूंगा कि कोई কোয়েশ্চেন मतलब तुम लोग जो इतना এতক্ষণ যে তোরা পুরো সেশনটা অ্যাটেন্ড করলি, এতগুলো অনেক কটা কথা শুনলি, শোনার পর যে मैं जेई में देना चाहता हूँ तो मेरी गुड प्रिपारेशन की कोई আচ্ছা শোন, আমরা আগেই বলেছি শ্যাম, আমরা আগেই বলেছি যে আমরা এখানে না শুধুমাত্র কি করছি বলতো, যে কলেজে তোরা যে কোনো কলেজ যা, যে কোনো সেকশনে যা, যে কোনো স্ট্রিমে যা, আমরা শুধু এখানে তোদেরকে আমাদের এক্সপেরিয়েন্সেস গুলো শেয়ার করছি। মানে দেখ এরকম এই যে আজকে যে অনেকগুলো কথা হলো যে আমি হচ্ছে এটা খেতে পারতাম না, আমি ওখানে যেটা শিখলাম, আমি এটা করতে পারতাম না, আমি শিখলাম, আমি টাইম ম্যানেজমেন্ট শিখলাম, বন্ধু কি করে চিন্তা হয় সেগুলো শিখলাম। তো আমরা শুধু এখানে এই জিনিসগুলো আমরা দেখ, আমরা কিন্তু এখানে কেমন করে প্রিপারেশন নেওয়া যেতে পারে সেগুলো আমরা কিন্তু খুব একটা বেশি আমরা করছি না, বুঝলি তো। আই এম সো সরি, কিন্তু তাও আমি তোকে এই কথাটা বলবো যে আমরা তোর পাশে সব সময় আছি, আমরা তোর পাশে সব সময় আছি, আমরা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও আছি, আমরা যতটা পারবো তোকে আমরা হেল্প করার চেষ্টা করবো সব দিক থেকে। কিন্তু আজকে আমরা পুরো ইভেন্টটা বলতে কেন অর্গানাইজ করেছি, এই যে আমরা কয়েকটা ছোট ছোট এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করেছি, আশা করি কোথাও একটা পুরো লাইফ তোর জার্নিতে কোথাও একটা এসে তুই হচ্ছে এই জিনিসগুলো ফেস করবি, আর তখন মনে পড়বে যে একটা ইভেন্ট হয়েছিল, সেই ইভেন্টে তো আমি এরকম করে শিখেছিলাম, এটাকে ম্যানেজ করতে হবে। তো আর কিছু কোনো প্রশ্ন, আর কিছু প্রশ্ন আছে? আমি সবাইকে একটা কথা বলে দিই যে আমরা কিন্তু তোদের সঙ্গে আছি, তোদের যখনই কোনো অসুবিধা হবে, যেখানে আটকে যাবি সেখানে হচ্ছে আমাদেরকে হচ্ছে ফোন করবি বা আমাদের টেক্সট করবি, আমরা সবাই তোদের সঙ্গে আছি। আচ্ছা, তো এইবার হচ্ছে ফান মানে এই সারপ্রাইজটা। আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে আছে একটা মানে কি বলবো, একটা রিনাউন্ড মানে খুব বড় মাপের এখন একটা হচ্ছে লেখক, সে হচ্ছে তোদেরকে বোঝাবে যে কি করে নিজের এই যে তোরা বললি না যে সবকিছু কি মেনটেন করা। আচ্ছা, आपका अगला सेशन कब है? যে এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বাস করে আমি যে কত খুশি হয়েছি, আমি তোদের সঙ্গে আবার দেখা করতে পারবো শিওর। ফার্স্ট পারসন আমি হবে, তোকে পার্সোনালি মেসেজ করবো যে প্লিজ তুই আয়। আমি কিন্তু বলেছিলাম না যে সেশনটা আমার আছে, তুই যে আমার দেখতে চাইছিস সেটা আমি খুব, শুধু আমাকে না আমাদের সবাইকে আবার দেখতে চাইছি। আই এম সো থ্যাঙ্কফুল টু ইউ। तो भैया हेलो हेलो, आप प्लीज अगर डिस्क्लोज करें अपना ये जो सरप्राइज का, तो प्लीज हम लोग बहुत खुश होंगे। सो सी जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूँ, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, राइट नाउ ही इज अ MBA फ्रॉम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बट इट्स नॉट हिज अचीवमेंट्स, ओके। ये उनका मेन अचीवमेंट नहीं है। उनका मेन अचीवमेंट क्या है, जो बहुत लोग बोल रहे थे ना कि पैशन हम अब कर पाएंगे या नहीं, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है। वो भी राइटर है, एक अच्छे पोएट है और एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी हैं, बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करे हैं, बहुत सारे पोएट्रीज लिखी है, और आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ हिम। सो without wasting a time, I would like to call Ankush. Ankush, please share your screen and share your thoughts with us. Ankush. Hello everyone. मेरा नाम अंकुश। हाय साकेत, कैसे हो भाई? बढ़िया, हाउ आर यू? आई एम आल्सो गुड। हेलो अमर्त्य, नाइस सीइंग यू भाई। तो मेरा नाम अंकुश श्रीवास्तव है। आई एम एन MBA स्टूडेंट, और 2020 में आई एम ग्रेजुएटिंग एज एन MBA स्टूडेंट इन मार्केटिंग। उसके अलावा 2015 में, जैसा साकेत ने बताया, आई डिड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। और इन दोनों के बीच में आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। तो मैंने एक तरह से स्टूडेंट था, फिर काम किया और फिर से स्टूडेंट बना। सो आई नो हाउ इट फील्स। तो यार ये स्टूडेंट लाइफ जो है ना तुम्हारी, इसको आई होप एवरीबडी इज एंजॉयिंग इट एंड लिविंग इट प्रॉपर्ली, बिकॉज एक बार ये स्टूडेंट लाइफ चली जाती है ना, फिर बहुत मिस करते हैं यार इस टाइम को, इस ड्यूरेशन को। तो लिव इन द प्रेजेंट। आगे की जो टेंशन है, जो फिक्र है, दैट इज वन थिंग, बट डू लिव इन द प्रेजेंट, डू एंजॉय एवरी मोमेंट दैट यू आर लिविंग। और मेरा काम यही है, एज अ पोएट, एज अ राइटर, आई ट्राई टू राइट द एग्जैक्ट मोमेंट व्हिच आई एम लिविंग। और कविताएं लिखना बहुत टाइम से है मेरा। अब मुझे 7-8 साल होने वाले हैं कि मैं लिख रहा हूँ। बट लिखने के लिए आई हैव रेड अ लॉट। आई रिमेम्बर आई वाज इन क्लास 8th
जब मैंने पढ़ना शुरू किया था लोगों को, तब मैं पुराने कवियों को पढ़ता था, जो हिंदी कवि थे। धीरे धीरे टेस्ट बदला, एक रीडिंग की हैबिट लगी, तो आई स्टार्टेड रीडिंग शायर, जो हमारे बड़े शायर लोग हैं उनको पढ़ना शुरू किया, जो गजलकार हैं, जो गीतकार हैं उनको पढ़ना शुरू किया, और काफी सारे लोग पसंद आए। सो एनीवन हियर हु इज इनटू राइटिंग, इंटरेस्टेड इनटू राइटिंग, पोएट्री, स्टोरीज, कोई है? एनी लैंग्वेज? अंकुश, आई एम देयर विथ हिंदी एंड एनीवन एल्स? और कोई है जो बंगाली या हिंदी या इंग्लिश में लिखता है और पोएट्री फॉलो करता है? यदि क्यों থাকে प्लीज बोलो। अच्छा, कोई भी लैंग्वेज हो, नॉट स्पेसिफिक। दे आर टाइपिंग, वो लोग टाइप कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि टाइम होने। लेकिन भैया मुझे इतना श्योर है कि आज अगर ये यहाँ पर कुछ क्षण हम लोग बिताए आप दोनों के साथ, तो श्योर जो कोई इंटरेस्टेड नहीं था आज से इंटरेस्टेड होने शुरू कर लेगा ये चीज। अरे अरे अरे, इतना तारीफ मत करिए, ये बहुत बड़ी बात है। अंकुश, मैं अंकुश को जान रहा हूँ, अंकुश को मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, वो मेरे से बहुत अच्छा लिखते हैं। सो मेरा और उनका कंपैटिबिलिटी आप मत टेस्ट करो। अंकुश, नहीं, मैंने भी साकेत को पढ़ा है, सुना है, साकेत बढ़िया लिखते हो यार, बहुत अच्छा। थैंक यू यार, मतलब थैंक यू। इट्स लाइक आप मेरा तारीफ कर रहे हो और कुछ नहीं। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो हम लोगों से, तो प्लीज, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो अंकुश इज हियर, वी आर आल्सो हियर। राइटिंग के रिस्पेक्ट में अगर कुछ भी पूछना है तो पूछो, कुछ भी। তোরা জিজ্ঞাসা করতে পারিস। দেখ এখানে দেখ, তোরা যে বলছিলিস না, দেখ ইনি কিন্তু পাস আউট হচ্ছে বিএইচইউ থেকে, তাও দেখ আজকে ইনার নামে কতগুলো পাবলিকেশনস আছে। তো এইসব জিনিসগুলো দেখ, মানে এইসব জিনিসগুলো একটা আমাদের জন্য একটা প্রেরণা কিন্তু এসে হতে পারে। তো তোরা প্লিজ হচ্ছে এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে পারিস। আর আমি একটা রিকোয়েস্ট রাখবো, अंकुल प्लीज वन रिक्वेस्ट, अगर एक कविता हम लोग को सुनाए प्लीज। जरूर। अच्छा अंकुश, एक क्वेश्चन था। हाँ अंकुश, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक क्वेश्चन था कि वो पैशन और स्टडीज को एक साथ लेके कैसे चले। मतलब बहुत लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन हुआ था एक तरह से, कि हम स्पोर्ट्स को स्टडीज को लेके कैसे चले। आप पे छोड़ा हुआ है, ये स्पेशल सेगमेंट में हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। तो आप क्या बताना चाहोगे? मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं अपने बारे में बताता हूँ यार, मैंने कैसे किया था। अगर तुम किसी चीज के लिए बहुत पैशनेट हो तो तुम्हें टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो टाइम अपने आप तुम्हें मिल जाता है कुछ भी करने का। जैसे देयर वाज अ टाइम अक्टूबर 2017 से लेकर मार्च 2018 तक, तो आई टेल यू मैं उस टाइम क्या कर रहा था। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन, व्हिच इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट एंट्रेंस के लिए। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, आई वाज टीचिंग एट एलन करियर इंस्टीट्यूट। मैं मैथ्स पढ़ाता था टू दी स्टूडेंट्स ऑफ हु वर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एज वेल एज वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एलन करियर इंस्टीट्यूट का नाम जरूर सुना होगा। एंड अदर देन दैट, इन दोनों के अलावा मैं पोइट्री इवेंट्स में जाता था। आई यूज्ड टू अटेंड मेनी ओपन माइक्स, मेनी इवेंट्स एज फीचर्ड गेस्ट। आपने बडी बिट्स का नाम सुना होगा फेसबुक पर। सो बडी बिट्स इज अ फेसबुक पेज जो फीचर करता है आर्टिस्ट को, एंड आई हैव बीन फीचर्ड ट्वाइस देयर। 2 of my poetry videos have gained more than 6 lakh views। तो यार मेरे लिए ये सारे अचीवमेंट्स हैं, और इन सब के लिए मैंने टाइम ढूंढा नहीं है, टाइम मिल जाता है। So whenever you're passionate about it, you obviously get time for it. You do it some or the other way. वो हो जाता है अपने आप। मतलब जो हम इतने देर से कह रहे थे, जो अंकुश भी कह रहे हैं कि जो चीज आपको खुशी देती है वो खुद ब खुद होने लगती है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है उस पे। अंकुश, मतलब अगर आप लोग फिर भी, एक बार मैं फिर बोलता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज अंकुश से आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अंकुश, आप अपनी पोएट्री के साथ हमें एक पोएट्री जरूर सुनाए, जो अमृतो का भी रिक्वेस्ट है और मेरा भी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ये तो सुनना ही है। ठीक है, तो एक छोटी सी पोएम सुनाता हूँ, नॉट अ वेरी लॉन्ग वन। तो आई गेस रोमांस ऐसा जॉनर है जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल है आज के टाइम में, और मैं रोमांस जॉनर बहुत ज्यादा लिखता हूँ। आई पर्सनली राइट इट अ लॉट, रीड इट अ लॉट।
So I'll start with one of my poems that I've written in the same genre. तो इसको टाइटल दिया है मैंने शाम का इंतजार। शाम का इंतजार। काम कर बहुत अच्छा। शाम का इंतजार करते रात हो गई। शाम का इंतजार करते रात हो गई। दोनों ने कुछ न कहा और बात हो गई। आसमान में बादल नहीं थे मगर वो मिले और अचानक बरसात हो गई। शाम का इंतजार करते रात हो गई। वाह बहुत अच्छा। इश्क या ये आगे है, ये आगे है। अच्छा हाँ इश्क अच्छा अच्छा इश्क इश्क और मोहब्बत में जंग छिड़ गई। इश्क और मोहब्बत में जंग छिड़ गई। कहने को थी छोटी सी पर बात बढ़ गई। इश्क वो मजहब का शिकार हो गया। मोहब्बत भी महज जज्बात हो गई। शाम का इंतजार करते रात हो गई। वाह क्या बात क्या बात बहुत अच्छा झिलमिल बहुत अच्छा क्या बात क्या बात बहुत अच्छा। आखिरी चार पंक्तियां सुनो कि झिलमिल चमकती आंखों ने, झिलमिल चमकती आंखों ने कुछ काम यूं किया। झिलमिल चमकती आंखों ने कुछ काम यूं किया। आंसू बहाकर प्यार से इनाम यूं दिया कि देखकर सब जल गए और बर्फ हो गए। तो अब दो प्यार करने वालों को देखकर लोग जल जाते हैं, तो वो जेलसी की फीलिंग, और बर्फ हो गए मतलब स्टोन कोल्ड, जो ऐसा होता है ना, Stone cold. शॉक हो गए बिल्कुल। तो वो दो फीलिंग्स को एक साथ लिखने की कोशिश की है कि झिलमिल चमकती आंखों ने कुछ काम यूं किया। आंसू बहाकर प्यार से इनाम यूं दिया कि देखकर सब जल गए और बर्फ हो गए। लड़ाई जिससे थी वो किस्मत साथ हो गई। शाम का इंतजार करते रात हो गई। अरे मैं बस एक बात कहना चाहूंगा। मैं बस एक बात, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सुकवंत भैया, साकिब भैया ने कहा था कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आपके उस फैन लिस्ट में एक जगह और है ना, तो प्लीज साकिब भैया थोड़ा ऊपर खींचा मेरा नाम लिख दीजिए प्लीज। और आज तो मुझे लगता है कि एक नया पेज निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो रिप्लाईज आ रहे हैं तो बहुत और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अंकुश के लिए। अंकुश पोएट्री हॉबी को लेकर स्टडी करना टफ नहीं था। आई मीन कभी ऐसा नहीं लगा कि जितना टाइम पोएट्री को दे रहा हूँ उतना टाइम स्टडीज को देना चाहिए था तो बेटर रिजल्ट आता। नहीं बिल्कुल सही बात है और मैं इस चीज से अग्री करता हूँ, बट स्टिल समहाउ आई हैव मैनेज्ड। क्योंकि होता क्या है ना, पोएट्री में तुम शब्द यूज कर रहे हो, अब उन्हीं शब्दों को तुम्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करके अपने स्टडीज में करना है। तो मैंने क्या किया ना, आई प्लेड इट वेरी स्मार्ट। मैंने लिया एमबीए मार्केटिंग। मेरे को फाइनेंस चाहिए ही नहीं था, ना फाइनेंस ना ऑपरेशंस, नथिंग। आई टुक एमबीए मार्केटिंग एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू डिलीवर योर वर्ड्स टू द कस्टमर्स। So you related your passion to your job. So I have somehow related everything to my passion. तो मेरे को दिक्कत नहीं हुई। I am the topper of my class. मेरे को 8.5 CGPA है यार 10 में से। তাহলে দেখো বুঝতে পারছিস তো ব্যাপারটা কি হচ্ছে। তো বারবার করে একটা কোশ্চেন এসে লিখবে প্রবলেম হয় না। দেখ কি সুন্দর ওরা, উনি একটা ট্রেন মতো বানিয়ে নিচ্ছে, সবকিছু রিলেট করে একটা জায়গায় আনতে পেরেছেন। তার মানে কি, যদি সবকিছু রিলেট হয় আর তোর ট্রেনের গাড়িটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে না, তো জিন্দগি কি পটরি মে ये গাড়ি চলতে হি रहेगी। তো আমি শুধু এইটাকেই বলতে চাইবো যে আরো কোনো যদি কোশ্চেন থাকে তোরা প্লিজ করতে পারিস। আর একটা কোশ্চেন বেঁচে ছিল, সেই কোশ্চেনটা আমি আসবো, যদি আর কোনো কোশ্চেন থাকে সেই কোশ্চেনটা প্লিজ তোরা করতে পারিস। अच्छा अंकुश और अमित, तो अगर और सारे पार्टिसिपेंट से मैं बोलूंगा अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे अंदर का भी राइटर जग गया है थोड़ा सा। बिल्कुल तो अगर मैं चाहूंगा कि आप लोगों को सुनाओ, अगर पीपल आर ओके विद इट, पार्टिसिपेंट से भी मैं चाहूंगा बिकॉज़ दे आर द रीजन बिहाइंड। एग्जैक्टली भैया, हम तो चाहते हैं कि ऐसे राइटर्स और जगे आज, और ये शाम खत्म ना हो, एक के बाद एक पार्टिसिपेंट आए और अपना राइटर्स का अपने अंदर से निकाले। अच्छा संदीप देवनाथ। ओके, सो रोमांटिज्म का बात हो रहा था कि रूहानियत की बात हो रही थी, तो अंकुश आई रेड समथिंग डिफरेंट अबाउट इट, मतलब एक थोड़ा सा अलग टेक्सचर देने का कोशिश किया है। टाइटल है एक बेनाम प्रश्न। एक
बेनाम। अच्छा, सूरज और चांद को एक साथ देखा है कभी? सूरज और चांद को एक साथ देखा है कभी? बेतुका सा सवाल है, जरूरी नहीं था, ऐसे ही पूछ लिया। सूरज और चांद को एक साथ देखा है कभी? बेतुका सा सवाल है, मगर ऐसे ही पूछ लिया। वो क्या है ना, मैं गांव का अल्हड़ हूं और तुम शहर की रहने वाली हो। मैं गांव का अल्हड़ हूं और तुम शहर की रहने वाली हो। कभी बारिश में भीगी भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू ली है तुमने? कभी बारिश की भीगी भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू ली है तुमने? कभी तुम्हारे हाथों से पानी गिरकर उस तपतपाती जमीन से एक करके आवाज निकली हो और उसको तुम हवा में ही भाप बनाकर लौटाते हुए तुम्हारे नाकों को छूकर गुजरा हो और तुमने कहा हो उफ। अच्छा, मैं बताना भूल गया, मैं गांव का अल्लड़ हूं, तुम शहर की जन्मी लड़की हो। हाँ, निरर्थक है, मगर जानना जरूरी है, क्योंकि ये गांव हमारा इश्क है और शहर तुम्हारी मजबूरी है। निरर्थक है ये सारी बातें, मगर ये जानना बहुत जरूरी है, ये गांव मेरा इश्क है और शहर तुम्हारी मजबूरी है। सुना है शहर में 20 घंटे रोशनी रहती है। सुना है शहर में 20 घंटे रोशनी रहती है। क्या उसमें तुमने चमकते गगन को देखा है? इसको देखकर नानी दादी की कहानियां वाली परियों को ढूंढने लगते हैं। वाह, छोड़ो, चलती बुझती डिबरी में खाना बनाने की कश्मकश में जूझती माँ को देखा है तुमने कि कैसे अपने अजले अरमानों को जिंदगी के फूंक के सहारे जला देती है हर माँ, और अपने अंश के लिए पूरे वंश को खुद को राख कर देती है अपनी माँ। लूह में भींगे मुस्कुराते लोग देखे हैं तुमने? लूह में भींगते मुस्कुराते लोग देखे हैं तुमने? जाहिर है जवाब नहीं होगा, पर पूछ लिया मैंने। एक अरसे पहले बोला था ना, मैं गांव का अल्लड़ हूं, तुम शहर की रहने वाली हो। अलग सोच है मेरी, अलग तुम्हारी ख्याति है। मैं कांतिहीन मुस्काता हूं और तुम कैमरे में काबिज कर कीर्तिवान बन जाती हो। फेमस। मैं कांतिहीन मुस्कुराता हूं और कैमरे में काबिज कर तुम कीर्तिवान बन जाती हो। मैं गांव का अल्लड़ हूं और तुम शहर की रहने वाली। मैं गांव का अल्लड़ हूं और तुम शहर की रहने वाली। वाह वाह, अरे वाह वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है। আচ্ছা, তোরা সবাই আমি তোকে বলতে পারি, তোরা যে কোনো যদি এরকম করে তোদের আস্তে আস্তে বেরোতে থাকে না, আজকে চাইছি না আজকে এটা শেষ হোক। আর কি কারোর বেরোচ্ছে কিছু কবিতা মন থেকে? বল, যে কোনো কবিতা বলতে পারিস। দেখ, আমরা সবকিছু শুনতে চাই, কিন্তু কবিতা শোনার আগে আমি একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেবো। সেটা আমরা কখনই একটা কথা বলেছি, আমরা আমাদের প্রমিস কখনো ভুলি না। আমি প্রমিস করি আমি আসছি এটাতে। শ্যাম, তুই কি এখনো আছিস? হ্যাঁ আছিস। তো শ্যাম, তুই তোর এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে আরেকবার যদি মাইক বা কোথাও একটা বলতে পারিস, আমি একটুখানি ক্লিয়ার হবে ব্যাপারটাতে। मतलब उसका क्वेश्चन मेरे को याद है कि रूममेट्स के साथ पढ़ाई करना डिफिकल्ट होता है या इजी होता है? नहीं, मैं क्वेश्चन वैसे रूममेट के साथ स्टडी एडजस्ट करना इजी होता है या फिर হার্ড হতো। আচ্ছা, একটা তোকে কথা বলতে পারি, আমি হোস্টেলে থাকি, ঠিক আছে? আমার হোস্টেলে আমার রুমমেটস আছে। দেখ, অনেক সময় কি হয়, আজকে তোরা হচ্ছে স্কুলে পড়িস, তো এবার স্কুলে কি হয় যে স্কুলে তোরা একা একা পড়ছিস বা মানে গ্রুপ স্টাডি ব্যাপারটা তোরা খুব একটা এখন শিখিসনি বা জানিস না, জানা উচিত না, মানে আমরা পসিবল না ব্যাপারটাতে। তো আমি তোকে কি বলি, আমি হচ্ছে এরকম হোস্টেলে যখন থাকি, আমার রুমমেটস এরকম আসে, এসে পড়াশোনা আমরা একসাথে করি। তাতে লাভটা কি বলছি, তাতে লাভটা কি, এরকম না অনেক কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফে আসবে বা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডিজ অনেক কিছু এরকম হয়, বা আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কেন বলছি, অনেক যে কোনো হোক, যে কোনো স্ট্রিম হোক, যে কোনো জায়গা হোক, অনেক জায়গায় এরকম মানে অনেক জায়গায় এরকম সিচুয়েশন হয় যে তুই কিছু বুঝছিস না বা তুই কিছু জানিস না, সেটা বোধহয় তোর রুমমেট জানে। তো ওটাতে তুই কি হলো, তোর দুটো কোয়ালিটি বাড়লো। একটা, তুই হচ্ছে যে জিনিসটা নিজের রুমমেটকে বোঝাচ্ছিস, তুই বুঝে নিজের রুমমেটকে বোঝাচ্ছিস বা তুই তোর বন্ধু বান্ধবকে বোঝাচ্ছিস, তোর কি হলো, তোর হচ্ছে ওই জিনিসটার ব্যাপারে ভোকাবুলারি বাড়লো, তোর তার নলেজ বাড়লো। আর ও যদি তোর কিছু বলে তাহলে তোর কি হলো, ওর মানে অত কঠিন কিছু লাগলো না। কারণ আমরা সবাই জানি, যদি কিছু একটা জিনিস তুই তোর মানে সিমিলার কাইন্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ বা সিমিলার কাইন্ড অফ মাইন্ডসেটের কাছে শুনি, তাড়াতাড়ি মাথায় ঢোকে। যেটা আমি আজকে এই কথাটাই বলি, আজকে যে পুরো সেশনটা হলো,
আজকে যে পুরো মিটিং আমরা ইভেন্টটা করলাম, সেই ইভেন্টটা আমরা অনেক কিছু বললাম। আর দেখ আমাদের প্রত্যেকটা কথা কিন্তু খুব রিলেটেবল তোদের সঙ্গে। দেখ তোরা অনেক বেশি রিলেট করতে পারলে তো অনেক বেশি মাথায় ঢুকলো, অনেক বেশি মনে থাকবে ব্যাপারটা। এটা যদি হচ্ছে কোনো একটা সিম্পল একটা লেকচার টাইপের হতো তাহলে কি মনে থাকতো না? তো ব্যাপারটা ইন্টারাকশন যত বেশি হচ্ছে তত বেশি মনে থাকবে। হ্যাঁ, কিন্তু সবকিছু দেখ রুমমেটের সঙ্গে, এখন আমি তোকে যেটা বললি রুমমেটের সঙ্গে থাকা মানেই যে গ্রুপ স্টাডির নামে পাবজি খেলা, তা কিন্তু একদমই Amato, Shayantan, are you here? Shayantan. Yes. Shayantan, if you have any question or anything to tell to Ankush and everybody, please you go ahead. तो मेरा ये था कि रूममेट था बेसिकली, तो उसके साथ एक्चुअली वो मैथ्स और फिजिक्स में अच्छा था एंड मोस्ट ऑफ द लाइक टॉपिक्स तो मेरे को बहुत हेल्प करता था। दैट्स तो वो उसमें तो मेरा हो गया था कि एटलीस्ट अच्छा मेरे को रूममेट मिल गया था। It was a positive attitude for you, मतलब पॉजिटिवली चला गया। अंकुश, on that note we like कि आप आखिरी कुछ बातें, कुछ मोटिवेशनल कुछ हम लोगों के लिए बोले, हमारे जूनियर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्त उनको कुछ बोले ताकि वो एक मोटिवेट होके यहाँ से जाए, प्लीज। जरूर मुझे ऐसा लगता है कि सर्कमस्टेंसेस हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती है, ठीक है, पर हमें अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है कि हम अपने आप को ना खोएं। तो मैंने इस पर कुछ लिखा था, वो मैं सुनाऊंगा। 4 पंक्तियां ही हैं छोटी सी कि बिल्कुल न सूरज संग मेरे न चंदा मेरा है, न सूरज संग मेरे न चंदा मेरा है, न आकाश मेरा न भूतल मेरा है। भूतल मतलब जमीन। न सूरज संग मेरे न चंदा मेरा है, न आकाश मेरा न भूतल मेरा है। मैं मन से हूँ जैसा हूँ दिखता भी वैसा, मैं मन से हूँ जैसा हूँ दिखता भी वैसा, ये स्याही है मेरी और दिल ये मेरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट जो होता है ना, उसके मन में, हर इंसान के मन में एक्चुअली ये होता है कि यार वो इस दुनिया में रहे न रहे, पर उसकी कला, उसकी बातें लोगों के दिलों में हमेशा रहनी चाहिए। मतलब उसको ऐसा एक काम करके जाना है इस दुनिया में कि लोग उसको हमेशा उस काम के लिए याद रखें कि उसने बहुत अच्छा काम किया। तो एज एन आर्टिस्ट मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी और मैं हमेशा ये पंक्तियां सुनाता हूँ जब भी अपना सेशन कहीं पे एंड कर रहा होता हूँ। तो मैं ये 2 पंक्तियां कहूँगा साकेत, और फिर मैं विदा लूंगा यार। कि 2 पंक्तियां ऐसी हैं कि मेरे हुनर की, मेरे शब्दों की, हुनर इज टैलेंट, तो मेरे हुनर की, मेरे शब्दों की बातें बार बार होनी चाहिए। लगता है ना ऐसा? हर आर्टिस्ट ऐसा लगता है। हाँ, सही बात। कि मेरे हुनर की, मेरे शब्दों की बातें बार बार होनी चाहिए। मैं जिंदगी खुल के जी रहा हूँ क्योंकि मेरी मौत यादगार होनी चाहिए। अरे वाह, और मेरा मोटो यही है कि जिंदगी खुल के जियो, जो होगा देखा जाएगा आगे। अंकुश प्लीज आप अभी लीव मत करना सेशन, बिकॉज वी हैव अ स्मॉल टू मेक and we will quickly have a snaps of this event, so please don't leave the chat, okay? It's a request, Ankush. Sure. तो मतलब मैं अब सबको एक ही बात बोलूंगा कि वो अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो मिर्जा गालिब बन लो, क्योंकि उनके जैसा राइटर, हर राइटर का एक लाइफ होता है कि वो मिर्जा गालिब बनना चाहता है। तो मैं मिर्जा गालिब नहीं बन सकता, लेकिन एक बार मिर्जा गालिब को जरूर पढ़ना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, उनकी पूरी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। कि एक जॉन आलिया साहब ने लिखा है कि वो बोलते हैं ना कि वर्क हार्ड अंटिल योर सिग्नेचर बिकम्स योर ऑटोग्राफ। तो जॉन आलिया साहब ने लिखा है कि ये मेरा जीने का सलीका नहीं, मैंने कुछ ऐसा कभी लिखा ही नहीं। तो चीज में ही कितना रिडम्पशन है, बहुत सारी। और एक लाइन है कि मुझे कभी मोहब्बत नहीं हुई शायद, मुझे कभी मोहब्बत हुई नहीं शायद, एहसास सबको जगाता रहा हूं मैं। तो रिडेम्पशन जरूरी है, आप रिडीम करते रहो चीजों को। अमतो, ऑन दैट नोट टू यू ओवर टू अमतो एंड शायंतन, प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर। थैंक यू সবাইকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। आप इधर आए अंकुश, और आपने हम लोग को इतना कुछ बोला। आई गेस সবাই হচ্ছে তোরা খুব ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে এই ব্যাপারটাকে দিয়ে, এটা সবকিছু শুনে আমি মনে করি তোরা সবাই ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে। তোরা যদি কিছু বলতে চাস পুরো ইভেন্টের ব্যাপারে, কেউ যদি আমাকে এসে কিছু বলতে চাস, আমরা সবাই শুনবো ব্যাপারটা। প্লিজ এনিথিং, এখনো কোনো কোশ্চেন আছে তোদের? কোনো কোশ্চেন আছে সব বল।
বলবি, সবকিছু বলবি, কারণ আমরা মনে করি যে কোনোটাই যে শেখার কোনো শেষ নেই, কথা বলার কোনো জায়গা নেই, সব জায়গায় সবকিছু বলা যায়, সব জায়গায় সবকিছু শেখা যায়। তো প্লিজ তোরা চন্দ্রজিৎ বলতে পারিস। And meanwhile, जब तक आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, please do like our official page, which will be shared to your Facebook, to your WhatsApp group and Facebook as well, and video will be uploaded on YouTube in a while. So stay tuned. কারো কোশ্চেন না থাকলে প্লিজ সবাই ভিডিওটা অন করে রাখ, বিকজ উই আর গোনা টেক আ স্ন্যাপ। তো অ্যাকচুয়ালি turn on your cameras, please. Manjeet, please turn on your camera. And also to mention, after this talk show, we're going to be launching our YouTube channel, so Art and Literature Society, JIC. So be sure to check that. এই যতগুলো ভিডিওস গুলো আছে সেটা সব ওখানে গিয়ে তোর আপলোড করা হবে। সো লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব channel, and also join our Facebook page, Art and Literature Society, JIC. Be in touch. Be in touch. तो यहाँ पर इतने जन इतने कुछ बोले, तो लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि देखिए, मैं तो कुछ राइटर हूँ नहीं, ना मुझे लिखना आता है, ना मुझे कुछ आता है, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि पंक्तियां बस मिलाना है और अपना जो भी इमोशन है बस वो लिख दो या फिर बोल दो, वही कुछ लिख हो सकता है। मैं उतना बड़ा हूँ नहीं, इससे पहले माफी मांग ले रहा हूँ। कुछ मैं ऐसा कुछ बोलने वाला नहीं जो बहुत टच करे, मैं बस इतना बस बोलूंगा कि हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ा सबाई ऐसे, हम तुम लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। अगर कहीं अटक जाओ, ऐसा लगा कि जिंदगी की गाड़ी रुक गई है कहीं, तो बस एक व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज कर देना, कहीं भी हो, किसने दूर भी हो, ऐसा इवेंट फिर से ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो ठीक है, तो সবাই আমাদের সঙ্গে থাকি, এরকম করে আমরা সবাই এর পাশে থাকবো। আর মনে রাখবি, কিছু অসুবিধা, কোথাও কোথাও আটকে যাচ্ছিস, ওই আবার বললাম, কোথাও আমাকে মেসেজ করবি, কারণ আমরা সবাই তোর পাশে আছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা একটা লাস্ট স্ন্যাপ নিয়ে নেবো, কারণ আমি এখনো শিখলাম কি করে হচ্ছে স্ক্রিনশট নিতাম। এক লাস্ট স্ন্যাপ নিয়ে প্লিজ একটুখানি হচ্ছে অন কর, আমি লাস্ট স্ন্যাপ নিয়ে নিই, তারপর আমরা হচ্ছে মিটিংটাকে লিড করবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপডেট উইল বি গিভেন অন গ্রুপ, একদম আপডেট উইল বি গিভেন অন গ্রুপ। আমি একটা পিক নিয়ে নিই, তারপর আমরা এটা সবাই প্লিজ 1 সেকেন্ডে তুমি যদি পারিস তোর হচ্ছে ভিডিওটা কমেন্ট করো। It's a request, please turn on your cameras, please. 1 সেকেন্ডের জন্য কর, আমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে হচ্ছে। আচ্ছা, আমি তাহলে সবাই আর কি করবি, আমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেব। Thank you. Because it's a memory, we want to keep this memory. Please turn your cameras. Please turn on your cameras. Okay. Thank you so much. Okay. Tada. Be healthy, be safe, and hope. Tada, bye bye. Tada. Thank you, Ankush. Thank you. Hello. Okay. Thank you. Bye. Thank you. It's a great. আর কোন প্রশ্ন প্লিজ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপডেট করতে থাকবে, আমরা সবাই তোর পাশে আছি। ওকে, বাই, থ্যাংক ইউ। See you. Tada. Bye. Thank you. Bye. Thank you. মিটিংটা Everyone.